Assalamu alaikum and good afternoon to this all-important quarter-final. We got two teams in the middle. One is Najmeen Cricket Club, the other one is Royal Goodwill. And Goodwill will be feeling first again as the likes of Najmeen Cricket Club. We're waiting for the two openers to make their way out to the centre. It's little overcast at the moment, but looks like it's going to be a promising one for all of us here at the centre. Again, Nazir in the com box. Nazir, Royal Goodwill out in the middle, dispersed it out, they were in a hurdle, but we're still waiting for the Najmeen openers to make their way out to the centre. अस्सलाम वालेकुम, हार्दिक अभिवादन। स्वागत करना चाहेंगे सभी श्रोताओं का जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। हम आपकी सेवा में उपस्थित चैंपियंस लीग शालबुक चैंपियंस लीग 2024 का एक और निर्णायक तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला जो कि अब प्रारंभ होने जा रहा है। रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम गेंदबाजी करेगी, वही नजमीन क्रिकेट क्लब की टीम को अवसर मिला है बल्लेबाजी के लिए और अभ्यास इस समय मैदान में आप विजुअल्स देख रहे हैं चलता हुआ। नजमीन की प्रारंभिक जोड़ी की प्रतीक्षा की जा रही है। दोनों अंपायर्स अपने अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं। बड़ा दिलचस्प मुकाबला। और अगर वातावरण की बात करें, खूबसूरत वातावरण, हालांकि उतनी ज्यादा धूप है नहीं, और ऐसे में एक संघर्षपूर्ण मुकाबले की आशा में तमाम क्रिकेट के चाहने वाले प्रतीक्षा में है कि यह मुकाबला किस प्रकार का होगा, किस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलेगी, किस प्रकार का हाव भाव होगा। तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला आज के दिन इस प्रतियोगिता के इस निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हम आप तक जरूर लेकर के आ रहे हैं। Well, these are the lively pictures coming from the centre for all of our beloved listeners on JK Sports Time. You can see that Najmeen and their two openers are making their way out to the centre. Khalid Butt it is. One of them, the other one is Umar Nisar. Two talented lads from Heart of Stee out in the middle. And look at the sportsman spirit, and this is really nice. Hugging each other over there. And I think it's Umar left here over there talking to other two colleagues. No, it's Akib here, hugging his opponent colleagues, and now they're getting ready to walk onto the field. And look at these boys warming up a bit, and these are the lively pictures coming your way. Early pictures from the centre as Royal Goodwill will be fielding first again as the likes of Najmeen Cricket Club. And you can see that Najmeen and their boys need to stood up to the occasion or stand up to the occasion again as the likes of such a big team like Royal Goodwill. You know that Goodwill is a packed side, and you need some extra a bit of effort on the field to make it count. But on the other side, who's going to open the attack? It looks like Ishtiyaq Rasool. Nag is warming up at the moment. It looks like Nag he's warming up, and he's going to open the attack for his team here. On strike will be Khalid Butt. Umar Nisar is at non-strike end. He's having a word with the Nag, and our Nag is getting ready to bowl in over number one. There is Midon also in place, and there is there anyone at slip? It looks like there is someone, but we'll have to wait and watch. Is he going to take that position? Yes, it is Jahangir Lone there at first slip. Then there is straightish point, cover point, and mid-off, and Adil Dada is at mid-on. Mid-wicket there is a fielder, then there is Skellig on the boundary, and short fine like within 30 yard. With this field, Nag will be bowling to the likes of you know that he is famous for his style, for his big shots, and for his stylish stroke play. Here is ball one of the match. Nag goes, and he goes back and punches it back to the ball. A hop stop made by Nag, and Khalid but wanted a single, denied by his partner. But look at that pace, Nazir. He generating first ball, and he hammered it, almost hammered it. But Nag, you know that he's like Rock of Gibraltar, stops the ball. प्रारंभ हो चुका है मुकाबले का। इश्तियाक रसूल गेंदबाजी का प्रारंभ कर चुके हैं, और ऐसे में खालिद के लिए ये गेंद बाहर सीधे बल्ले से बढ़िया स्ट्रोक है ये, और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर सीमा रेखा से बाहर जस्ट बोखारा छक्का। पहला छक्का खालिद बट के बल्ले से निकलता हुआ, और ऐसे में खाता खुला नजमीन क्रिकेट क्लब का 6 बगैर नुकसान के। शुरुआत यहाँ नजमीन क्रिकेट क्लब की। We were talking about copybook, stylish, proper cricketing stroke, and this is for you. An exhibition of that, and that one up and over long off. 6 more, half a dozen. And that just because 6 means he's off the mark, and his team is underway with that wonderful strike. And that was stylish one. What a shot on the occasion by Khalid Butt. And sends it packing straight over long off. It is Nag again. Third time.
down the leg side, flick that one, that's gone many a mile, over backward up square, 6 number 2, just Bukhara 6, don't bowl there Nag, you know that this is Khalid Butt for you. और देखिए जिस प्रकार की उनके अंदर क्षमता है, उस क्षमता के अनुकूल वो इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, और नाग के विरुद्ध अगर आप इस प्रकार से प्रहार करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका आत्मविश्वास जो है वो 7वें आसमान पर होगा। कर दिखाया यहाँ शुरुआती ओवर में ही कुछ कड़े प्रहार, 12 पे पहुंच गए मात्र 3 गेंदों से खालिद बट, और कुल रन संख्या इस समय 12। नजमीन की आखिरी गेंद नाग राइट आर्म ओवर द विकेट खालिद बट के लिए, और इस बार खालिद बट ने ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को अंतिम समय में बल्ला तिरछा किया। खेला जरूर उसको ऑफ साइड में, वहां खिलाड़ी तैनात थे, फील्ड तो हुई जरूर लेकिन रन बनने की किसी भी संभावना को समाप्त किया। पहला ओवर प्रगति पर नाग गेंदबाजी कर रहे हैं, खालिद बट और उनके साथ उमर निसार, ये प्रारंभिक जोड़ी है जहां तक नजमीन की टीम का सवाल। शालबुग चैंपियंस लीग का ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला वर्तमान स्थिति में पहली पारी चलती हुई, ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थे, किनारा जरूर वहां सबब थे, एक समय में विकेट कीपर वहां चौके, हालांकि पहली स्लिप में जहांगीर लोन तैनात जरूर थे, उनके पास गेंद पहुंची, उन्होंने फील्ड कर लिया, रन मिला नहीं। रन संख्या अभी भी ठीक हुई 12 पे बगैर नुकसान के। 12 for none. It's dozen on the boat. We saw 2 big shots coming. One that was gorgeous, the other one that was a bad delivery, but he penalized it in style. The next one goes back and pulls that one. He races away. Look at that short mid-wicket fielder. What can he do? He says, "No, I can't do very much with that one." It's a missile. And gone all the way for 4. That was brought to you by Just Bukhara. Look at that when Aziri roll back again quickly and then pulls it away with tremendous sense of urgency. और वहाँ शॉर्ट मिड विकेट पे हालांकि मुजीबुल हक जो है छोटे कद के खिलाड़ी है, उनने उछलते हुए प्रयास जरूर किया था लेकिन गेंद उनकी पहुंच से बाहर थी, गोली की रफ्तार से वहाँ मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए जस्ट बुखारा चौका। ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर में 16 रन बने और 16 के 16 रन खालिद बट के खाते में। शुरुआत बहुत बढ़िया लेकिन गेंदबाज के लिए अच्छी शुरुआत नहीं है, क्योंकि इन परिस्थिति में आपको एक बेहतर तरीके से गेंदबाजी करनी है, सही दिशा और लंबाई के साथ गेंदबाजी करनी है, और अगर आप सही दिशा नियंत्रित गेंदबाजी करते हैं तो फिर निश्चित तौर पर दबाव बना सकते हैं। फील्डर पर फिलहाल पहली बार इस ओवर में उमर निसार स्ट्राइक लेंगे और गेंदबाजी का दायित्व उमर लेफ्टी के पास। You can see that Nag is struggling at the moment. He's looking on his fingers again and again, and as I'm using Celeb on that occasion, I think he has hurt his right hand badly. Yes, and he's still looking after it, and he needs some care from physio, I think, some attention of physio. देखिए वो तेज तरार स्ट्रोक था पहली गेंद पर जो खालिद बट ने खेला था, और गेंद उनके वहां उंगलियों पे जा टकराई थी, और ऐसे में वहां थोड़े चोटिल जरूर हुए, अभी भी दर्द से करा रहे हैं। और इन परिस्थिति में क्योंकि उनका चोटिल होना काफी दिक्कत पैदा करेगा अगर वो चोटिल होते हैं, हालांकि ऐसी कोई संभावना नहीं है, और इन परिस्थितियों में काफी कुछ निर्भर करेगा यहाँ इस जोड़ी पे जो कि प्रारंभिक जोड़ी है उमर निसार और उनके साथ खालिद बट। उमर निसार पहली बार स्ट्राइक लेने की तैयारी में, नजमीन को पहले आज इस निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बल्लेबाजी का अवसर मिला रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के विरुद्ध, और पहले ओवर में 16 रन, क्या बेहतरीन वो बल्लेबाजी थी शुरुआती ओवर में, जहां खालिद बट ने 2 छक्के और 1 चौका जड़ा इश्तियाक रसूल के विरुद्ध। उमर निसार सामना करने के लिए तैयार, पारी का दूसरा ओवर, 5 नंबर की जर्सी पहने हुए उमर लेफ्टी जो कि दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं। पहली गेंद और बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर पड़ने के बाद फिर बाहर की तरफ निकली और उसको देखा वाला वहां उमर निसार ने और जाने पर दिया विकेट कीपर के लिए बगैर किसी रन के। हड़बड़ाहट से बचना होगा, एक ठोस शुरुआत की आवश्यकता प्रारंभ में नजमीन के दोनों बल्लेबाजों को। You're absolutely right. Need to be cautious earlier on. This is over number 2. Yeah, you have runs on the board. Now you need to take care of each and every wicket here. Put premium on the wickets and take time. Here's the next. So good delivery. Better line. Beauty. And look at that one, Jaffa. And look at the batter. He's having a word with his partner there, telling him that look how the ball is kicking, jumping. And in no time, it was absolute Jaffa. Snowdropper delivery, beats him on the occasion, left alone, shouldering his arms, and this is what he needed to do. Does well on the occasion, left alone to wicketkeeper. Here is Umar again. Umar Nisar looks to cut it and misses the line of ball completely. Again that bounce past the blade there. Again there is some steep bounce and off again. Third time in this we have seen that. देखिए उनके पास अच्छी खासी गति है और उस गति का बेहतर तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, और न सिर्फ बेहतर तरीके से बेहतर गति का प्रयोग बल्कि एक सही दिशा और लंबाई पे गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं उमर निसार किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे, उनके विपरीत आपको किस प्रकार से अपनी गेंदबाजी रखनी है, कहां पे टिप्पा देना है गेंदबाज को, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। और उमर लेफ्टी एक
ऐसे गेंदबाज हैं जो कभी भी किसी भी मैच में पासा पलट सकते हैं। वो एक विकेट टेकिंग बॉलर है। यहाँ ऐसे में उनको लाया गया है दूसरे ओवर में। अगली गेंद लेकर के तैयार, ये गेंद और इस बार लेग स्टंप पर उसको खेला, वहां खिलाड़ी के पास थ्रो किया, रन लेने का प्रयास जरूर हुआ था लेकिन खालिद भट्ट ने वापस भेजा रन बनने की समारोह को समाप्त किया। इससे पूर्व खालिद भट्ट उनके पास जरूर पहुंचे थे, कुछ बातचीत की कि हड़बड़ाहट की स्थिति नहीं है, आप बड़ी सहजता के साथ, संयम के साथ, आत्मविश्वास रखिए, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कीजिए ताकि एक बेहतर शुरुआत यहाँ नाजबीन के लिए हो सके। Yeah, of course, you're absolutely right. Partnership is what they need earlier on. The next one goes back and pulls it away upishly in the air, but there isn't anyone patrolling. And someone comes across from square leg before he could return the ball. The two batters have time in the world to scamper through. 2 more runs headed. Oh, look at that one. And he's down on the field, Manisar, limping. But somehow gets back to the safety of crease. He's by scared. 2 more runs headed. And he's off the mark after using 5 balls. It was wonderful. We saw bounce, steep bounce on offer, and hitting the deck out of the good length spot ball, kicking, jumping, and it hurries. On too many occasions we saw ball hurries onto the batter, but this time round he was able to rock back and then pulls it away. Not in control, but nevertheless he's going to take the brace. एक छोर से जब आप प्रभावशाली गेंदबाजी कर नहीं पाते, दूसरे छोर से आप बेहतर गेंदबाजी करते हैं तो फिर दूसरे गेंदबाज का भी आत्मविश्वास बढ़ता है, वो बेहतर तरीके से गेंदबाजी का प्रयास करेगा। और ऐसे में ओवर लेफ्टी ने बहुत ही बेहतरीन शुरुआत की है, 5 गेंदें फेंकी है और अभी तक इस ओवर में मात्र उन्होंने 2 रन खर्चे। क्या बेहतरीन गेंदबाजी अब तक उन्होंने की है। अगली गेंद और इस बार फुलर लेंथ की गेंद, खेला जरूर मिड ऑफ पे, खिलाड़ी तैनात है, हालांकि हल्का सा फंबल जरूर हुआ वहां नाग से और समय मिल गया दोनों बल्लेबाजों को 1 रन बटोरने का। 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ ही ओवर भी समाप्त हुआ। 2 ओवर पूरे हो चुके हैं और 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या इस समय 19 तक समाप्ति पहुंच चुकी है। क्या बेहतरीन शुरुआत अब तक मिली है और इन परिस्थितियों में नाग पे काफी कुछ निर्भर करेगा। शुरुआती ओवर उनका कोई प्रभावशाली नहीं रहा, वो पैनापन उनकी गेंदबाजी में, वो अनुशासन उनकी गेंदबाजी में दिखाई नहीं दिया। 16 रन उन्होंने पहले ओवर में खर्चे थे और यहां से दूसरे ओवर में अब जाकर के वो किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे ये देखने वाली बात होगी। Yeah, of course, you're absolutely right. How he's going to bowl in a second over because he's going to continue. He is known for opening the attack and he's opener bat, he's opener bowler. And here he comes again. In his very first over, gone for 16. And second over, so just 3 runs coming. And now this is over number 3 coming up. And Nag again into the attack here. How he's going to bowl from calm box and on strike will be Umar Nisar again. He's on to 3 of 6 balls. And Nag will be bowling. Umar is marking the fresh caught from umpire. There is slip in place. Then there is backward a point. Cover point is also in place. Goes back and using that angle blade. And trying to caress it through upside, but Azim Brother stops the ball. Not a clean stop, but 1 more run added. That brings Khalid Bhatt back on strike here. May remind you, tomorrow is going to be WCL Grand Finale. And it's going to be superb day coming up. Sultan is taking on Didu Rangers on the shores, on the banks of River Jhelum and the Asia's famous water body. That's Wolof for you. And here is Nag again. On strike is Khalid Bhatt. Goes and bows and works away. Look at that one, eases up. An easy one for this lad. Easy peasy to me, 1 more run. And that single will mean Khalid will be on strike and Umar Nisar back on strike. He's on to 4. It's 21 without loss in over number 3. 21 रन बना लिया है। तीसरा ओवर, ओवर निसार है सामने। अगली गेंद और इस बार लेग स्टंप पर आती है गेंद को ऑन साइड पे धकेला। 1 रन आसानी के साथ अच्छी रन देती है दोनों बल्लेबाजों की, क्योंकि जानते हैं बड़े स्ट्रोक्स नहीं आ रहे हैं तो ऐसे में सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में आप दबाव भी बना सकते हैं फील्डर्स पर। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी और खालिद भट्ट किसी भी हड़बड़ाहट में नहीं है। कुछ बेहतर स्ट्रोक शुरुआती ओवर्स में खेले, यहाँ जब अच्छी खासी गेंदबाजी हो रही है तो बड़े सम्मानजनक रूप से वो इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। 17 पेना बाद 7 गेंदों से स्ट्राइक लेने की तैयारी में 5 रन बनाए हैं उमर निसार ने। ये पारी का तीसरा ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ और इश्तियाक रसूल कोटे का दूसरा ओवर फेंक रहे हैं। पारी का ये तीसरा ओवर जहां तक रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब का सवाल है। ये गेंद उस बार खेला उसको, एक बार फिर गेंद लॉन्ग ऑन की और एक टिप्पे के बाद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए एक और जस्ट बोकारा चौका खालिद भट्ट के बल्ले से। वे 8 गेंदों से 21 पर पहुंचे और रन संख्या इस समय करीब 26 तक पहुंचा दी। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत और दोनों बल्लेबाज किसी भी हड़बड़ाहट में नहीं है, क्योंकि जानते जितना बेहतर तरीके से शुरुआती ओवर्स में बल्लेबाजी करेंगे, पावर प्ले का जितना बेहतर इस्तेमाल करेंगे उतना आपके हित में बेहतर कहा जा सकता है। इस बार ऑन साइड में ये काफी ऊंची गई है गेंद, लेकिन खिलाड़ी दर्शक बनेंगे और गेंद सीमा रेखा से बाहर। एक और जस्ट बोकारा छक्का खालिद भट्ट के नाम। And look at that one, another Skyer, and it goes over backward of Skyer, just Bukhara 6, but that's another biggie.
And look at Khalid Butt looking totally different today. Partnership is 32 of just 17 balls. What can Nag do, because it's Khalid Butt in full swing here. He's on song here. He's singing like a singer, driven handsomely. This could be tight. Needed a direct hit, but he gets away with that one. He survives. And one more run and he will keep the strike for the next over. It's 33 without loss after 3. 11 over. Not bad. Still very nice. देखिए शुरुआत में आप 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रहे हैं. पहले ओवर में 16 खर्चे, दूसरे ओवर में आपने 11 खर्चे, तो 2 ओवर में 27 रन नाग ने खर्चे हैं. और ऐसे में देखना होगा 30 रन, क्षमा कीजिएगा, 2 ओवर में 30 रन खर्चे और 2 रन मात्र पहले ओवर में उमर लेफ्टी ने. तो आप कल्पना कर सकते हैं उमर लेफ्टी ने बेहतर गेंदबाजी की है नाग से और उन्होंने रनगति पे अच्छा खासा संकट लगाया था, वहां दबाव बनाया था, लेकिन उस दबाव को तोड़ने में एक बार फिर सफलता हुई इस ओवर में जब नाग दूसरे ओवर के लिए आए. फिलहाल 3 ओवर समाप्त, 32. रॉयल गुडविल के खिलाफ इस समय नजमीन क्रिकेट क्लब की टीम निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबला शालबुग चैंपियंस लीग 2024 का और जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से शालबुग से सीधा प्रसारण आप तक पहुंच रहा है. नए ओवर की शुरुआत, पारी का चौथा ओवर. पहली गेंद हमसे दूर भागते उमर लेफ्टी और इस बार उसको खेला जरूर और फिर गैप में यहां चौका मिलेगा और जब तक आदिल दादा पहुंचते गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए एक और जस्ट बोकारा चौका यहां खालिद भट्ट अथवा उमर निसार के बल्ले से निकलता हुआ. 36 रन संख्या 3.1 के बाद. In the vacant space and it races away in no time. Another 4 here and Khalid moves to 32 of 11 balls. And if you remember that innings on the banks of Valor, and he has been incredible with the bat. What a batter he is. Flawless, absolutely gorgeous and fantabulous. And here is the next one from Umar. Goes and bows and beaten on that occasion again. And this is the beauty of Umar, and he's got some assistance from the deck too, and he's hitting the deck hard, and there is an up bounce, there is steep bounce to tease and annoy the batter. देखिए अच्छी खासी उछाल उनको मिल रही है और उसका कारण ये भी है कि आप सही दिशा और लंबाई के साथ गेंदबाजी करें, क्योंकि जानते हैं इरादे क्या है खालिद भट्ट के और उनके विरुद्ध आपको कैसे गेंदबाजी करनी है. मानसिक संतुलन बनाए हुए यहाँ गेंदबाज उमर लेफ्टी और उस मानसिकता के तहत वो गेंदबाजी कर रहे हैं. अगली गेंद खालिद भट्ट के लिए इस बार बढ़िया गेंद नीची रहती और फिर चौके वहां पर गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई. बहुत ही बेहतरीन और कहना चाहिए उमर लेफ्टी के चाहे वो उमर निसार हो चाहे वो खालिद भट्ट हो, कुछ असहजता महसूस की है अब तक उनके 2 ओवर्स में. No doubt about that. Quality bowler, Umar Lefty. Quality all-rounder to be precise. He can bat well, he can field well. He's a 3-dimensional player in aspect. And here he's going to bowl again to Sam Ladd Khalid Butt as Umar goes. And that edgish one on the bounce to wicketkeeper, he survives. And it is Waitele behind the stumps, way back, standing way behind the back. And it's a dot ball. It's another precious dot. Each and every dot ball is like gold dust here, Nazir, because bowlers need to chip in with dots over here, because on the other side we have seen that bat swing, the bat speed and the ball flying all the way. He is like a destroyer in the middle. He's trying to demolish the bowling attack and the bowling line as we watch Umar to Khalid, up, above and down towards long off it. A filling in pursuit, can't get to the ball, and that was brought to you by Just Bukhara. It was in the air for quite some time. Nag unable to get to the ball. Umar isn't happy, but it's sped past up the turf all the way for 4, and with that boundary it's 40 on the board without loss in over number 4. देखिए लगातार बेहतर बल्लेबाजी हो रही है, चाहे वो खालिद भट्ट हो जो 36 पे नाबाद है, 15 मात्र गेंदों से 8 गेंदों से 5 बनाए. उमर निसार ने, उमर को ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिली है, लेकिन जितनी भी स्ट्राइक खालिद भट्ट को मिली है उसने बेहतर तरीके से परफॉर्म किया है, बेहतरीन बल्लेबाजी की है. उमर लेफ्टी दूसरा ओवर, पारी का चौथा और पावर प्ले ऑन. सामने है खालिद भट्ट, ये गेंद और इस बार ऑन साइड में लीजिए एक और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए. एक और जस्ट बोकारा चौका खालिद भट्ट के बल्ले से वे 40 पे पहुंच गए मात्र 16 गेंदों से और 45 रन संख्या पहुंच चुके हैं मात्र 4 ओवर में. आप कल्पना कर सकते हैं विस्फोटक बल्लेबाजी, तेज तरार, इरादे स्पष्ट खालिद भट्ट के. Scoring at the rate of shade of 11 at the moment, the 45 without loss. Good attendance here at the Santa. Good crowd is in to witness this all important quarter final. Change in the bowling. It's Nadeem to operate. Well, let us see. Is he going to bring some change in the bowling here? Is he going to bring some change in the course and complexion of the game? The way batters are batting, but there is a change in the bowling. Will it be change of fortunes for this side? Let's find it out. Here we are in over number 5. We're done with the 4th one. Change in the bowling. Nadeem for the first time to bowl. Khalid 40 of 16 bowling. He's into his 40s. No slip in. Slip comes out.
There is third man. There is Jangir Lone. There is Straightish point, cover point, extra cover and mid-off. There is mid-on in place. Short mid-wicket is in place. Scaleg on the boundary. And short fine leg within 30 odd. Behind 45 on onside. And these are the beloved listeners. Thank you very much everyone out there. Keep watching, keep sporting. Fresh or beginners. First ball. Wide of the off and does well. Beats the man and it races away. Runs four of them. Deadline. And punished in style. Lays bat onto it. And bisects that point and cover to perfection. And that was brought to by Just Bukhara. Another good shot. Chasing that one. He chased the ball. It was wide enough. It was way away. And almost close to that tram liner, that marker. देखिए जब दिन आपका होता है तो फिर हर कोई चीज आपके पाले में आती है और वही हुआ ऑप्शन से काफी बाहर थे उस पे बल्ला अड़ाया और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई चौका मिला ये परिवर्तन नदीम बट तीसरे गेंदबाज इस बार अच्छी गेंद थी पंजों के बालों चलते हुए ऑफसाइड में धकेला दौड़ पड़े थे नॉन स्ट्राइक की छोर से स्टंप्स पे सीधा पड़ता तो नजदीकी मामला और कहना चाहिए विकेट मिल सकता था यहाँ भाग्यशाली रहे सुरक्षित क्रीज पर पहुंचे वहां खालिद बट और इस प्रकार की हड़बड़ाहट से बचना होगा दोनों बल्लेबाजों को ओवर निसार 9-10 गेंदों से और 16 गेंदों से 40 रन बनाकर खालिद बट नॉन स्ट्राइक पर नाबाद है नदीम बट तीसरे गेंदबाज के रूप में इश्तियाक ने 2 ओवर की गेंदबाजी की और नदीम बट जो है पहला ओवर कर रहे हैं उमर लेफ्टी ने 2 ओवर की गेंदबाजी तो कुल मिलाकर ये 5वां ओवर एक विकेट की तलाश में शुरुआती ओवर में अभी तक सफलता नहीं मिली है 99 नंबर की जर्सी पहने हुए नदीम अगली गेंद लेकर के और इस बार अच्छी गेंद थी मिड स्टंप पे आती हुई पंजों के बालों चलते एक बार फिर ऑफसाइड में धकेला थ्रो किया वहां पर खिलाड़ी ने जरूर बैकअप कर रहे थे आदिल दादा 1 रन जरूर मिलेगा वहां उमर निसार और खालिद बट को खालिद अब स्ट्राइक पे रहेंगे और ऐसे में 27 गेंदों से 50 रनों की यह नाबाद साझेदारी प्रारंभिक जोड़ी ने पूरी कर लिया नजमीन क्रिकेट क्लब के लिए क्या शुरुआत क्या बेहतरीन साझेदारी कहना चाहिए इस निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में So far so good, flawless, pristine, incredible partnership and stand shared by these two lads. It's 50 on the board and we have seen Khalid Butt unleashing the terror with the bat, terrorizing the bowlers and going after the bowlers. Nadeem to Khalid and Khalid cut away nicely, races away in no time, electric quick and that's gone like that of lightning quick for 4. That was brought to you by Just Bukhara. Scare cut on offer and it races away. Nobody is gonna move. Nobody did and it races away. देखिए जिस प्रकार से ये खिलाड़ी अभी तक बीच मैदान में परफॉर्म करता आया है लाजवाब बेहतरीन और आकर्षक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है ये गेंद और इस बार बड़ा स्ट्रोक लेकिन यह अवसर है कैच लपकने का आदिल दादा संतुलित हो रहे हैं और कैच लपक लिया और पहला विकेट जिसकी हम चर्चा कर रहे थे इस बार पूरी तरह से गेंद बल्ले पे आई नहीं स्ट्रोक जरूर खेला हवा में उछली हालांकि गेंद में वहां फासला नहीं था और ऐसे में विकेट मिल गया यहाँ खालिद बट 44 बनाए 17 गेंदों का सामना किया पहले विकेट के रूप में मैदान से बाहर जाते हुए 50 पे पहला विकेट या नजवीन ने गवा दिया high on him can't ride on the bounce there and the ball of the leading edge lob is off and mid-on as well. Adil Dada settling underneath the ball, takes it in the end. It's wicket number 1, much needed one, and he strikes first blood, and it is bowler Nadeem Butt among the wickets, using that bounce to perfection, hitting the deck hard, cranking a ball, and he goes back quickly, but can't middle that one. A lobes off an edge. The edgish one flies to mid-on, and mid-on does well. After fall of his wicket, Newman walks in at number 3. Who's in at number 3? We'll have to wait and watch. This is all important quarter-final underway over cost conditions. Interesting the way he batted here today. It was unbelievable under certain circumstances, and he looked in absolute control, in complete control. He was bossing the situation over here, but this is the only occasion where he failed to get right on top of the bounce, and he perished on that occasion. But still, a lot of batting to come, lot more batting to come as far as Najmeen is concerned. But on the other side, bowlers need to be disciplined with the ball, keep hitting the right areas, keep pitching in the right zones. The new man is in at number 3. It's Boy Mir in at number 3 to face the likes of Nadeem Butt, who bowled 5 balls, gone for 9 and picked up a wicket, picked up a scalp. He clambered a wicket in the form of Khalid, but Dangerman is gone. Mr. 360 of Steve is back to pavilion now. It's Nadeem to bowl.
New batter Boimir in at number 3. Oh, great sportsman spirit again. These are the lively pictures to me and to everyone on JK Sports Time this afternoon. Great sportsman spirit. Handshakes exchanged, and he's going back to his original position. Wicketkeeper Nasir Kumar, and the last ball of this over coming up. For the first time, Boimir in front of Nadeem here, as Nadeem is getting ready to operate. Leaves, crosses umpire and bows. That one, it didn't rise too much on the wicket. It stays low, and Boimir shuffle across. No connection. It's a dot. Successful over comes to an end. We're done with the 5th one. It's 5 done. 54 for the loss of a wicket. 5 ओवर पूरे हो चुके हैं, 54 बने, 1 विकेट खोया खालिद भट्ट के रूप में। उन्होंने 44 रनों का योगदान दिया। तेज तरार विस्फोटक पारी उनकी थी, लेकिन उस पारी को और बड़ी पारी में परिवर्तित नहीं कर पाए और 1 विकेट मिल गया। आदिल दादा ने कैच लपका, नदीम को वो सफलता मिली। फिलहाल 5 ओवर के बाद परिवर्तन रंग लाया और 54 बने। अब जाकर के एक और परिवर्तन, दोहरा परिवर्तन आकिब मीर को लेकर के आए हैं गेंदबाजी में, तो देखना होगा अब उनके 4 ओवर काफी महत्वपूर्ण रहने वाले। यहाँ शुरुआत बहुत बढ़िया मिल चुकी है और इस शुरुआत पे प्लेटफॉर्म पे एक बहुत बड़ी नींव आपको रखनी होगी। नींव मिली है और बहुत बड़ी इमारत आपको खड़ी करनी होगी। क्या उसमें सफलता मिलेगी नजमीन के बल्लेबाजों को अथवा नहीं? क्या एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे अथवा नहीं? अभ्यास इस समय कर रहे हैं गेंदबाजी का आकिब मीर नाग के साथ, ये देखते हुए कि वह परिवर्तन के तौर पर ये उनका पहला ओवर पारी का, ये 6वां ओवर यानी पावर प्ले का अंतिम ओवर होगा। और 2 नाबाद बल्लेबाज उमर निसार और बॉय मीर, हालांकि बॉय मीर को खाता खोलना है, मात्र 1 गेंद का उन्होंने सामना किया है। और दूसरी ओर उमर निसार जो कि पारी का प्रारंभ कर रहे थे खालिद भट्ट के साथ, वो 10 पे नाबाद है, 11 गेंदों का सामना किया। एक नजदीकी स्लिप उनके लिए और ऐसे में वो अब आकिब मीर का सामना करेंगे। यहाँ पहली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, इसको हल्के हाथों के साथ और साइड में धकेला, दौड़ पड़े वहां विकेट कीपर जब तक गेंद को फील्ड करते। 1 रन और खाते में जुड़ा और उमर निसार रन संख्या उनकी व्यक्तिगत 11 गेंदों से कुल रन संख्या 5.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद 55 1 विकेट के नुकसान पे। Changing the bowling spin for the first time here, and let us see how spinners are going to bowl here, how he's going to operate here. Akib Mir, he's also known as Mr. Consistent in the valley. It's high time to deliver for his team. And talking of Khalid Bhatt and his team, Khalid laid the foundation, others just need to come in and cash on, just entertain themselves and enjoy the batsmanship. Here is Akib, little uppish, doesn't bother to keep it down. Lucky escape, nearly lucky escape, and it falling short of man there at extra cover. He gets away with that one. Slip is in, and there is final goals in place. Akib goes again to Boimir and goes back and then works it away quickly, and there is a field coming quickly onto the ball, but not before the 2 batters scamper through. 2 more runs added with that brace. It's 57 on the board for the loss of a wicket. Solitary one down here in the form of Khalid, who scored 44 invaluable and all important runs. The way he batted, he transferred all the pressure. And X1 beaten on that occasion on the outrage, negligible foot movement there, and beaten comprehensively, gets away with it. Survive scare. Akib Mir, he's miser with the ball. Haven't seen him giving away too much. Another good delivery, getting right behind that one and blocks it. No run there. Exchange of smile between Umar and Akib Mir. This is quarter final underway. Must win game, do or die, now or never. In the air, there is a man, 3 men converging. Who's gonna get to the ball? It dropped. Should have been taken. Should have been taken. It's Mujibul Haq. A Dwarfic size man dropped that one. Spilled, it should have been taken. And it's Boimir who gets the lifeline. Survives. He gets away with that one. We're done with the power play. 59 for 1. 6 ओवर पूरे, यानी कि जो पहला अनिवार्य पावर प्ले 6 ओवर का रहता है वो समाप्त हो चुका है। 59 बने, 1 विकेट। अच्छी शुरुआत पावर प्ले की और ऐसे में पिछली गेंद पर वो कैच छोटा मुजीबुल हक से, और ऐसे में एक जीवन दान बॉय मीर को मिलता हुआ। बॉय मीर 4 पे 6 गेंदों से, उमर निसार 11-12 गेंदों से, कुल रन संख्या 6 के बाद 59 करीब 10 के आसपास प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं। यहाँ रॉयल गुडविल के विरुद्ध नजमीन क्रिकेट क्लब की टीम ने इस निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शालबुग चैंपियंस लीग गांधरबल 2024
का ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला और जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक पहुंचा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और एमएचएम फैशन फीस्टा, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बुक और हमदान हरिकेन, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब और उसके अलावा एचएनडी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स का, अपने श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए, आनंद लेते रहिए। पहली पारी 20 ओवर का कोटा, ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला और ऐसे में नजमीन की टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के विरुद्ध 59 एक विकेट के नुकसान पर नए ओवर की शुरुआत। एक और परिवर्तन विजन पांचल को लेकर के आए हैं और देखना होगा पांचल किस प्रकार का प्रदर्शन करेंगे। बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज है और क्या उनकी उन कटर्स का यहाँ पे प्रयोग होगा, वो कटर्स हमें देखने को मिलेंगी। बहुत ही बेहतर गेंदबाज They're expecting Anchal from Panchal here. और बिल्कुल Anchal लहराना वो बहुत ही बेहतर गेंदबाज है, काफी समय के बाद उनका चयन हुआ है और विजन पांचल जो अब गेंदबाजी के लिए आए हैं परिवर्तन के तौर पर पांचवें गेंदबाज का प्रयोग। अगली गेंद तिरछे रन आपके साथ क्रीज के कोने से वाइड ऑफ द क्रीज गेंदबाजी करते हैं और इस बार लेग स्टंप पर ये दिशाहीन गेंद। और अब तक के इन 7वें ओवर की अगर हम बात करें, ये पहला अतिरिक्त रन। First extra run here, discipline shown by the lads. A little on that occasion, and it goes down the leg side. Spring it far too down, leg called as wide. Here is Vijan again, Vijan Panchal. Good shot, scared right, scared driven, but there is production, there is field. Only a single accrued on the occasion. That is to rotate strike. Keep doing that on regular basis. You don't have another Khalid in the lineup. Remember that. He can do whatever he wants to do, but he is capable. He is master at that. But others just need to stick to basics and rotate. Here is Panchal again, shaping for the sweep shot, wraps him on the pad. Shot fell BW and turned down by umpire. Vijan having a word with umpire, and I think he's telling him, do you have some vision? He says, yeah, I'm very much master at that. It's fine. It's clearly down the leg side. Good decision. Here is Panchal. Good delivery again and keeps it away on offside. And Yaya goes on straight away. Screams Yaya and scamper through one more run at it. Good running between the wickets. Quarter final underway. Remember, tomorrow is going to be Super Sunday blockbuster. It is Sultan Warriors taking on Dedu Rangers Kashmir, two big teams of the valley at WCL. Oh, good shot again, looking nice, but Azim, he's a multi-talented lad. Azim does well, recovered after that little slide and little slippery on that occasion. He slipped quite a bit, but recovered in no time to take the ball on the bounce. One more run at it. 13 to Nisar Nisar, 15 balls, and Boimir 5 8 balls. Easily done. Bad line. Should beat the man. It does. That's 4. And that was brought to you by Jas Bukhara, and that 4 will end the over on a high here. And with that boundary, we're done with over number 7, I think. And we'll have to wait and watch. It is 67 for the loss of a wicket. 7 ओवर पूरे हो चुके हैं, 67 रन बने और 1 विकेट खोया। 5 गेंदबाजों का प्रयोग अभी तक, इश्तियाक रसूल, नदीम बाट, आकिब मीर, उमर लेफ्टी और विजन पंचल, ये 5 गेंदबाज अभी तक आजमाए गए हैं। मात्र 1 विकेट खालिद भट्ट की नदीम भट्ट को मिली थी और आकिब मीर अपना कोटे का दूसरा ओवर पारी का 8वां ओवर लेकर के तैयार नजमीन के लिए रॉयल गुडविल की ओर से। 7 नंबर की जर्सी पहने हुए और अपने पहले ओवर में उन्होंने 5 रन खर्चे थे। दूसरे ओवर में आप वो गेंदबाजी करेंगे, यह 8वां ओवर पारी का होगा। पहली गेंद 67, 1 विकेट के नुकसान पर इस बार कैच वहां पे किनारा लेती हुई गेंद, विकेट कीपर नासिर कुमार के दस्ताने में विकेट मिल गया। यहां दूसरा बात हो रही थी विकेट की तलाश में और आकिब मीर ने वो सफलता दिला दी। दूसरा विकेट नजमीन का गिरता हुआ 67 पे। Yeah, he's gone here, caught behind, and Akim Mir finally finds his man here, and wicketkeeper equally spotted him. Good goal, nice take. It's wicket number 2 down. That follow wicket brought to you by Just Bukhara. Reminder, this is JK Sports Time in collaboration with the proud sponsors and them supporting Fashion Feast, the Shining Star Pump, amateur multi-brand by Rafi Wani, Greenlands Cricket Club, Dulgate Sports Club, Hamdan Hurricanes, the importers and the exporters in the valley. And we got H&D Complete Kids Wear, Natipura, Srinagar. These are the proud sponsors of JK Sports Time. And we have big tournaments coming up this year. We have one. We are on verge and cusp, on brink of entering the biggest extravaganza of cricket. The cricket toss is coming your way. That's going to be Red FM Premier League, and it's going to be Bajate Raho and Udatera. It's like that, isn't it?
अरे But, बिल्कुल। अरे गुरु, यूं कहिए कि क्रिकेट का महासंग्राम जम्मू कश्मीर के नाम आ रही है। रेड प्रीमियर लीग FM 92.5 बजाते रहो। बजाते रहो। Red FM Premier League is coming up. That's going to be an incredible tournament, and we'll be there. But at this very crucial juncture, we're in Shalabuk. Edge goes down to this fine leg area. Call is for 2, and he's going back for the second. Good running between the wickets. Narrow escape, and he's going to take that. He survives. He survived Red FM League. Entry confirmed. Really? Well, Edge goes down to his fine leg. So one more run at it. It's Najmeen Cricket Club batting against the likes of Royal Goodwill. Quicker one, worked away quickly. Will just be one. It's John Mir and Boy Mir out in the middle. Now it's Mir's care to take care of Najmeen and their scorecard. देखिए ये जिसे हम क्यूब कहते हैं, बॉय मीर, जॉन मीर और आकिब मीर गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ये तिगड़ी बनी यहाँ इस मुकाबले में, और देखना होगा बाजी किसके हाथ लगेगी। अगली गेंद आकिब मीर की, और इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को वहाँ स्क्वायर लेग की ओर धकेला। 1 रन पूरा करेंगे। वहाँ मुजीबुल हक है, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया। 1 रन और खाते में, और जॉन मीर 3, 2 गेंदों से 10 गेंदों से 10 बॉय मीर। कुल रन संख्या धीरे धीरे से बढ़ती हुई करीब करीब 69 तक सबूते पहुंच चुके हैं। ये पारी का 8वां ओवर आकिब मीर गेंदबाजी कर रहे हैं रॉयल गुडविल की ओर से। अगली गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ मिडल पे आती हुई इसको खेला जरूर, काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी वहां आकिब मीर को, लेकिन बैकअप कर रहे थे नासिर गनई, वो पहुंचे गेंद तक, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन और खाते में जुड़ा, और 1 रन के साथ ही रन संख्या बढ़ती हुई करीब करीब 70 तक पहुंच चुकी है। नजमीन को अच्छी शुरुआत, लेकिन उसके बाद खालिद भट्ट का विकेट गिरा। खालिद भट्ट के बाद जो उनके साथ उमर निसार प्रारंभ कर रहे थे, दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। वो विकेट खालिद भट्ट का नदीम भट्ट को मिला, और दूसरा विकेट उमर निसार का आकिब मीर को मिला। ये गेंद इस बार जगह बनाते हैं, बढ़िया स्ट्रोक, खूबसूरत गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और जस्ट मौका चौका, आत्मविश्वास वहां बल्लेबाज का बढ़ेगा इस चौके के साथ। आवश्यकता भी थी। आकिब मीर का ओवर समाप्त, 8 पूरे 74, 2 विकेट के नुकसान पे। Done 74 on the board. Held the boundary and helped it on its way, and his team needed that badly. This is over number 9. We are in Vijan. Panchal is gonna bowl again. He's gonna use his punch. Is he gonna tease? Is he gonna weave that web with the ball? Only the time will tell us. Is he gonna weave that magic with the ball as he goes away from us to John Mir, and the swings hard, and it goes swept hard down to the backward of Scare Fans for 4, and that was brought to you by Just Booker. A shuffle across, and Vijan isn't happy with his line there. Bowled it down the leg side, straying it onto the pad line. Easily done. The line up the ball, and it pitching well outside leg. Easy pickings. Nice pickup shot with the tight whiffed away, and Panchal need to readjust his line here. He need to overcome that before it's too late. Next one, oh, good delivery. Nearly opened him on that occasion, but can't beat that batting stance, or can't beat that bat. It didn't go through, but somehow teased him on that occasion and troubled him on that occasion. That was a quality delivery, and it is Boy Mir and John Mir, the pair in the middle. The pair of Mir to take care of their side here, as Panchal goes again, and scared driven beats the man inside 30 odd, and he left alone it to the one who's at sweeper of cover area, who comes across and stops the ball, but not before 2 batters crossed over for 1 more run. And each and every run is what they need at this crucial juncture. Rotate, strike, and keep doing it on regular basis if you want to put on a show. विजन पंचल गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ से। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, हालांकि हल्की सी अपील, वहां पर कुछ प्रश्न पूछा जरूर अंपायर से, स्वीकार नहीं किया, नकारा, रन बनने की संभावना को समाप्त किया। लगातार यहां बेहतर प्रदर्शन करना होगा, एक बड़ी साझेदारी की आवश्यकता दोनों बल्लेबाजों को, चाहे वो जॉन मीर हो चाहे बॉय मीर हो। एक बड़ी शुरुआत देनी होगी, एक बेहतर तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, गैप तलाशने होंगे, और ऐसे में अगली गेंद विजन की, और इस बार फिर अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास असफल हुआ, बाकी का काम पूरा किया।
दिया विकेट कीपर नासिर कुमार ने। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट चलता हुआ, हालांकि पहली पारी अच्छी खासी मात्रा में यहाँ दर्शक उपलब्ध है इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए, और जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ हमारे चहेते श्रोता भी इस मुकाबले का आनंद लेते हैं। विजन पांचल तिरछे रन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक, फिर सफलता नहीं मिली, और आपको गेंद की मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी करनी होगी। गेंद कहां पे टिप्पा खाए, गेंद की पिच तक पहुंचना होगा, वो परिस्थितियां थोड़ी सी अभी असहजता में बनी हुई दोनों बल्लेबाजों के लिए। फिलहाल ओवर समाप्त हुआ, 9 ओवर पूरे हो चुके हैं और अभी भी 11 ओवर का आना बाकी, 8 विकेट आपके पास सुरक्षित, और समझता हूं यहां से आप अभी भी एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। You're absolutely right. Yeah, they got a foundation laid for the big score, but these batters need to rotate strike. What is lacking as far as John is concerned, he's going cross the line again and again. After each and every ball here, I saw him going cross the line and using that stance. He's becoming so predictable that bowler is able to beat him again and again. It's better to rotate strike, place the ball. You got enough areas, be the offside, be the onside, even straight hit area. You are just long off and long on in place, and you can just place the ball. There is a mid off, and just place the ball in that V. That's in there. Here is a field that long off. Can he take that one? He takes it in there, and it's wicket number 2 down. Here, it's wicket number 3 down. He's taken it long off. Nicely held by Amal Apti. He's a real athlete on the field. Reverse cups that one. It's wicket number 3 down, and that follow wicket brought to you by Just Bukhara, and Boy Mir is gone here. क्या भरपूर और बेहतर तरीके से अपना संतुलन बनाए रखा वहां उमर लेफ्टी ने, पूर्वानुमान के साथ ये कैच लपक लिया, और ऐसे में तीसरा विकेट नजमीन ने गवा दिया है। खालिद भट्ट, उसके बाद उमर निसार, और अब तीसरे विकेट के रूप में बॉय मीर मैदान से बाहर जा रहे हैं। समस्या बढ़ती हुई, क्योंकि एक साझेदारी पनप रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि धीरे धीरे से अब एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर, और उसी समय में एक और विकेट आकिब मीर के नाम, और उनकी गेंदबाजी विश्लेषण देख लीजिए। 2.1 ओवर 14 रन और 2 विकेट, कमाल की गेंदबाजी। अब जब अवसर मिला, बेहतर तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है अपने लिए और अपनी टीम के लिए। Asif Ramzan is in at number 5, left-hander batter. He's from Pampur, the Sepran town of Valley, and it's going to be Akimir again. And look at his figures: 2.1, 2 for 14. Miser with the ball. And in Hindi you call it kanjusi karna, and it's like that. He's doing it in style here, and now Akib is turning the tide his side way, and Royal Goodwill seriously back into this one. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, ऐसे समय में उन परिस्थितियों में जब टीम को आवश्यकता थी वो आए, गेंदबाजी बहुत बढ़िया की, 2 विकेट चटकाए और कहीं न कहीं बैकफुट पर धकेल दिया अब तक के इस सत्र में नजमीन क्रिकेट क्लब की टीम को। फिलहाल नए बल्लेबाज आसिफ रमजान, एक और दिग्गज खिलाड़ी, और अनुभव की कमी नहीं, लेकिन जहां इन परिस्थितियों में परफॉर्म करना होगा, बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी आकिब मीर के सामने। ये गेंद, और इस बार बल्ला चलाया जरूर, उन्होंने खेलने का प्रयास किया, नासिर गनाई उस डाइव लगाते हुए गेंद को रोका जरूर, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और खाते में जुड़ा, और 1 रन के साथ ही रन संख्या आगे धीरे धीरे से बढ़ती हुई नजमीन क्रिकेट क्लब, क्योंकि चाहते हैं यहां से विकेट को सुरक्षित रखा जाए, एक साझेदारी निभे, और आने वाले सत्र में अगर आप आने वाले 2-4 ओवर्स में एक बेहतरीन साझेदारी निभाते हैं, दोनों बल्लेबाज मिलकर के गैप तक खेलते हैं, उसके बाद सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करते हैं, तो आप अभी भी एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। Yeah, you need to perform, you need to go big, and you need to adjust yourself, you need to apply yourselves. The next one goes cross the line again, but there is production, there is speed, will just be one. Now it's up to these two lads, Asif Ramzan and John Mir. One is to keep that scoreboard in mind, other one is to keep wickets intact. 2 things, and build that momentum and take it deep as possible, take it at least to 14th over, then allow the middle and down the other batters to come in and enjoy the batsmanship. Goes back and pulls it away, big chase for Nog there, and Nog does well on the slide, stops the ball, but can't stop that second run, so 2 more runs added there. Healthy brace for Asif Ramzan. This is going to give him some confidence. He moves to 3 of 2 balls, and John Mir is into the double figures of 9 balls. And Boy Mir failure today. There is a slip in place, still slip in place. Back along the track, back to the ball, and over, and there it's a dot ball. And each and every dot ball is going to put pressure on both the batters. देखिए, 1 को 2 में कन्वर्ट करना, इस प्रकार की रणनीति अपनानी होगी, तभी जाकर के आप विपक्षी टीम में दबाव बना सकते हैं। इस बार खेला और गैप में पीछे खिलाड़ी क्या रोक पाएंगे? जी हां, बिल्कुल सीमा रेखा के अंदर 1-2 कदम जब तक रोकते, थ्रो करते, समय था दोनों बल्लेबाजों के पास रन बटोरने का, और ऐसे में 1 रन और खाते में छोड़ दिया, और 1 रन के साथ ही दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। बड़ा बेहतरीन क्रिकेट ओवर समाप्त हुआ। 9 ओवर अब तक पूरे हो चुके हैं रॉयल गुडविल की ओर से, और नजमीन ने
3 विकेट खालिद भट्ट, उमर निसार और बॉय के रूप में गंवा दिया है। नाबाद जोड़ी जॉन मीर और आसिफ रमजान। जॉन मीर 10 9 गेंदों से, आसिफ रमजान 4 गेंदों से इस समय नाबाद है। और इन परिस्थितियों में देखना होगा अगले 11 ओवर में किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी। यहाँ एक और परिवर्तन, क्या आदिल दादा से अब गेंदबाजी होगी? जी हाँ, और उन्हें अब गेंदबाजी के लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि जानते हैं तेज गेंदबाजों ने यहाँ कोई प्रभावशाली गेंदबाजी की नहीं है, तो ऐसे में अब स्पिन गेंदबाजी ज्यादा बेहतर रही है। हालांकि विजन पांचल कोई ज्यादा प्रभाव छोड़ नहीं पाए। आकिब मीर ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की, नपीतुली अनुशासन दिखा, किफायतीपन दिखा, 2 विकेट चट के, और अब जाकर के आदिल दादा को लेकर के आए हैं 10वें ओवर में। आदिल दादा पहली बार इस मुकाबले में गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के आसिफ रमजान के लिए, और आसिफ रमजान पे काफी कुछ निर्भर करेगा, दायित्व तो उनके कंधों पर हो यहां से एक बड़ी पारी खेलने का, और जब तक वो विकेट पे टिके रहेंगे आशाएं बनी रहेंगी, साथ देना होगा वहां उनके साथी खिलाड़ी जॉन मीर को। जॉन मीर 10 और आसिफ रमजान 4। 10 ओवर की शुरुआत, आदिल दादा पहली गेंद लेकर के। इस बार जगह मिल गई, स्टोक खेला, लाजवाब स्टोक, लेकिन उससे भी बेहतर क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन मुजीबुल हक द्वारा, पूर्व अनुमान लगाया और वहां सीधा थ्रो विकेट कीपर के पास, और स्टंप्स वहां पर बिखेरे। क्या ये रन आउट? जी हां, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से चौथा विकेट गंवा दिया है नजमीन क्रिकेट क्लब की टीम ने। Bizarre, and Asif Ramzan is gone, and look at the field. Credit goes to the man at backward a point, who does well, puts in a slide to stop the ball, and it was traveling at a great pace, but look at the return with tremendous sense of urgency, and caught him short of his ground there, and he sold himself down the river. He's going back to pavilion. It's wicket number 4 down here. Big trouble for Najmeen Cricket Club from higher ups, or from high flying zone to possible lows here at Gaunderbal Sports Pavilion. You can see that they are now 4 down, and at one stage they were riding on the bowlers, but now you can see, Nazir, they are struggling at the moment. They are in deep trouble. Inshallah about is here at Dire Straits again, and who's going to rescue them, who's going to bail them out? देखिए, जब साझेदारी यहाँ पे प्रतीत हुई, जब साझेदारी निभी, और ऐसा प्रतीत हुआ कि साझेदारी को एक बड़ी पारी में परिवर्तित करना होगा, बड़ी साझेदारी में परिवर्तित करना होगा, तभी विकेट गिरे। चाहे वो खालिद भट्ट का विकेट हो, चाहे उमर निसार का विकेट हो, बॉय मीर का विकेट हो, और अब जाकर के आसिफ रमजान का विकेट हो, तो निश्चित तौर पे वापसी कहना चाहिए गुडविल की, क्योंकि इन परिस्थिति में जिस प्रकार से वो अभी तक बल्लेबाजी किए हैं और बेहतर तरीके से गेंदबाजी हुई है, जिसके चलते यहाँ नए बल्लेबाज अब बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। जॉन मीर के साथ देखना होगा वो किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे। दाएं हाथ के बल्लेबाज, काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे, लेकिन संघर्ष था इस मुकाबले में बनी हुई, क्योंकि अभी भी 6 विकेट आपके पास सुरक्षित है। कुल मिलाकर इस ओवर के बाद 10 ओवर का आना बाकी, आधा सफर यहां तय करने जा रही है नजमीन की टीम, लेकिन आने वाले 10 ओवर में किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी, आइए देखते हैं। ओवर की शुरुआत हो चली है, इस बार बड़ा स्ट्रोक आते ही, लेकिन उस ओर खिलाड़ी की पहुंच असफल और गेंद सीमा रेखा से बाहर, जस्ट मौका छक्का। Good shot there against the wind, and it flies all the way, goes off to that one. That's half a dozen. That's 6 brought to by Just Bukhara. What a shot with the tide, whiffed away, and Dada is bowling at good pace and using that pace to perfection here, batter, and swung away all the way for 6, half a dozen. Pressure will be on Dada here. Mir to 16 of 10 balls. Where is this one going? Vision Panchal at slip, and they respect offside field. Is he going to go after again here? Here is Dada, and beaten on that occasion. It's should have been put away, and he missed out on that occasion. It was asking to be hit, but he missed out on that occasion badly. लगातार बेहतर बल्लेबाजी जॉन मीर कर रहे हैं, कुछ कड़े प्रहार साहिल नए बल्लेबाज आए हैं। इस बार खेला अंदरूनी सिरे पे लगी, हाना की स्थिति, अंततः रन पूरा कर लिया। हालांकि जहांगीर लॉन ने गिरते हुए वहां थ्रू जरूर फेंका था वहां विकेट कीपर की ओर, लेकिन उससे पूर्व तेजी के साथ रन पूरा कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। 1 रन और खाते हुए जोड़ लिया। यहाँ अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा, क्योंकि आप जानते हैं 4 विकेट अब गंवा चुके हैं। यहाँ से अतिरिक्त जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है, एक साझेदारी की आवश्यकता है दोनों बल्लेबाजों को, और ऐसे में आदिल दादा गेंदबाजी कर रहे हैं। 10वां ओवर पारी का चलता हुआ, रॉयल गुडविल की टीम शालबुक चैंपियनशिप के इस निर्णायक तीसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में गेंदबाजी कर रही है नजमीन क्रिकेट क्लब के विरुद्ध। अगली गेंद लेकर के तैयार कमेंट्री बॉक्स एंड से आदिल दादा गेंदबाजी कर रहे हैं, और अभी तक कोई प्रभावशाली गेंदबाजी देखने को नहीं मिली है। ये गेंद और इस बार फिर खेलने का प्रयास किया था, इस बार सफलता नहीं मिली। गेंद पीछे विकेट कीपर के पास, हालांकि उनसे भी छिटकी, लेकिन कोई वहां पे नुकसान उठाना नहीं पड़ा, रन गति में कोई इजाफा नहीं। लगातार बेहतर और अच्छी खासी मात्रा में दर्शक यहाँ उपलब्ध
बाद धीरे धीरे से अभी भी मैदान में प्रवेश करते हुए इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए इस बार अच्छी गेंद थे, सम्मान दिया वहां पर बैट और पैड मिला करके मिडल ऑफ द बैट से खेला वापस आदिल दादा की ओर और यहां समझते ओवर भी समाप्त हुआ। तो आधा सफर तय हो चुका है, 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है नजबीन क्रिकेट क्लब की। We'll have to wait and watch. We're done with this server here. And it was Dada who was operating in his server here. He bowled really well, but that bat delivery, that was penalized in style. And he removed batter in this server that was in the form of, I think, run out. No, was he caught a run out? He was run out, I think. And that was a great return. Shy from the field at Scalag area, who does well to send in a return from point. It was left-hander Asif Ramzan batting. Well, then it is John Mir and Sahil. Sahil is capable. Sahil is a great batter. I have seen him batting in Chandigarh last year in that winter tournament. He batted like a champion batter, but today his team is in dire need, in desperate need, sorry, and they need this lad till the very last ball. He need to carry on with his bat if he want to support his team, because his team is in captive mood. He need to bail them out. Here is Vijan Panchal again, and wide of the off, and we'll have to wait and watch. Called as a wide, one more run. I need to reload and re-bowl that one. John Mee need to take care of his wicket here, put premium on his wicket, and he's batting deep, way deep in his crease there, very deep in crease. It's better to get to the pitch of the ball and then top of the shot. Vijan again, oh, back to the bowler. Is he gone? Yes, he is. What a catch and what a global in the follow through. और क्या बेहतर कैच वहां कॉटन बॉल लपका है। विजन पांचल को अंततः विकेट मिल गया और यहां 5वां विकेट गंवा दिया है नजवीन की टीम ने। आपके पास गेंदबाजी में अभी विकल्प है क्योंकि ओवर लेफ्टी के 2 ओवर आने बाकी है, आके मीर का 1 ओवर, नाग के 2 ओवर, आजिम राथर को अभी इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इन परिस्थिति में अगर हम गेंदबाजी की बात करें, अच्छी खासी गेंदबाजी अभी भी शेष है गुडविल के पास, लेकिन जितने भी विकल्प का इस्तेमाल किया है बेहतर तरीके से अपना दायित्व निभाया है। 5 विकेट, यानी कि आधी टीम इस समय पवेलियन लौट चुके हैं नजबीन की। और क्या बेहतरीन वापसी। शुरुआत में खालिद भट्ट ने जिस प्रकार से प्रहार किया, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद 200 से अधिकतम का लक्ष्य होगा, लेकिन क्रिकेट की यही खूबसूरती है, कब पासा पलटेगा, कब अनिश्चितताएं घटेंगी, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता। You're absolutely right. The game of glorious uncertainties, and credit goes to the captain and bowlers living up to their expectations, and that was a great reflex catch by Vijan Panchal in the follow through. For a while I thought it just bounced, but that carried to him, and that was absolute glorious one. Brilliant take, nice go ball, and Newman walks in at number 7 it is. Who joined at John Soil in the middle. We'll have to wait and watch. It's a left-hander, and as scorer will surely let us know who walked in at number 7. And looking at his body structure, he's got a good body size, and he's going to face the likes of Vijan Panchal, who struck in the server. He's on 9th moon, on cloud 9 here. But once more, Najmeen need to resurrect their innings here. It isn't over yet, still long way to go. Najmeen can still sense a comeback. They can still make their way back into this one. Vijan goes and bows, good delivery again, and keeps it away on onside down to where a scare up the wicket. One more run at it, and with that single he's off the mark straight away, and that brings John Meer on strike, who's on to 16 of 10 balls. He got his eyes in. Now John Meer need to take response. Sahil is on strike. Our scorer need to rectify it. It is still displaying John Meer and Sahil. One of them is back to pull, and that is John Meer. It is Sahil in the middle, and Sahil on strike now. साहिल स्ट्राइक लेने की तैयारी। विजन पांचल गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ से दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस बार गेंद की पिच तक पहुंचे, हालांकि किनारा वहां पर खिलाड़ी उस और, लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए। एक और जस्ट मोकारा चौका, हालांकि हल्का सा टिकल वहां पे किया था, लेकिन चौका यहां साहिल को मिलता हुआ, और इन परिस्थिति में इस चौके की आवश्यकता भी थी। जस्ट मोकारा चौका, रन संख्या लगातार बढ़ती हुई, और इन परिस्थिति में नजबीन की टीम चाहेगी यहां से साहिल का विकेट सुरक्षित रहे, अंत तक वो खेले, एक साझेदारी निभे, और वो एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकता है, क्योंकि रॉयल गुडविल के पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज। अगर बात करें, नाग उनके पास है, नासिर कुमार उनके पास है, जहांगीर लोन, उमर लेफ्टी, आके मीर, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, मुजीबुल हक। इसी बीच ये गेंद, और इस बार गेंद को ऑन साइड में धकेला। 1 रन जरूर मिलेगा, काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी वहां, जब तक नाग आते गेंद को फील्ड करते। 1 रन और खाते में जुड़ा, और 1 रन के साथ ही दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। लगातार बेहतर प्रदर्शन इस समय बल्लेबाजी का करना होगा साहिल और उनके साथी खिलाड़ी को, ये देखते हुए कि
नजमीन की टीम थोड़ी सी संकट की स्थिति में जरूर है, क्योंकि 5 विकेट आपने खोए हैं। ये 11वां ओवर पारी का चल रहा है और ऐसे में विजन गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, उस बार ऑफ स्टंप से काफी बार देखा बला, उसको छोड़ा विकेट कीपर के लिए और अंपायर का वहां पे निर्णय नहीं आया। समझते ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद वाइड होगी, लेकिन ऐसा नहीं। ओवर समाप्त हुआ, 11 पूरे 9 का खेल बचा है नजमीन क्रिकेट क्लब के लिए। Another successful over comes to an end. We're done with this one from Vijan Panchal. Another successful over, kept things tight and made the batter fall to a shot, and we saw the back of another batter here. Now these two batters need to bat according to the situation over here. It's a match worthy of the quarter-final. You win here, you are simply in the semi-finals of the tournament. It's a must-win game. It's do or die. But their team need to understand that. And if you remember that, it was Khalid Butt who was batting like true champion. The way he batted, it was flawless. It was a stupendous show. The way he was going off to the bowlers. He entertained everyone around the centre. That was enterprising knock. It was fearless. And oh, look at that one! It's wicket number 6 down. Goes across the line. It goes through like an arrow. और देखिए जिस प्रकार की ये गेंद पड़ी, वहां समझ में नहीं पाए। बल्ला जरूर चलाया, खेलने के लिए जरूर गए थे, लेकिन संपर्क हुआ नहीं, गेंद सीधे स्टंप्स पे टकराई और ऐसे में एक और विकेट का यहाँ पे पतन होता हुआ। हालांकि स्कोरबोर्ड ठीक तरीके से अपडेट हो नहीं पा रहा। ये 6वां विकेट गंवा दिया है नजमीन क्रिकेट क्लब की टीम ने। One more bites the dust, and I was just talking about that shooting arrow just gone through and knocked him over, castled him and cleaned him up, clean bowled, and it's Akimir among the wickets yet again. And what a day he's having with the ball here. He's enjoying his time, and it's wicket number, I think, 7th one bites the dust. Well, our scorer will let us know. We'll confirm that, but in a spot of bird, it is still displaying that it isn't working at the moment. I think we're having issues with the score ticker, but you're getting nice coverage from the center of Shalabuk Sports Field. Hope you enjoy and stay this way and hop to Sports Time way, because most of the stars are here at the center today to locking on with each other and trying their level best to entertain the crowd and to make a mark here. And it's Akimir with the ball. What a spell! What a spell! Dream spell for Akib. Goes and bows. Keeps it away on offside. Bunts it and picked up one. He say yeah and scamper through. Good running between the wickets. And this is what they need. It's better to stick to basics and rotate strike. देखिए आपके पास अभी भी ओवर शेष है। ये कुल मिलाकर 12वां ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ और इसके बाद 8 ओवर का खेल शेष है। और इन परिस्थितियों में अगर आप एक साझेदारी निभाएं, एक रन से पारी को चलाएं, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करें, एक को 2 में कन्वर्ट करें, तो आप दबाव बना सकते हैं और आप एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि क्रिकेट महानिश्चितताओं का खेल, 20 ओवर की ये पारी, ये निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबला है शालबुक चैंपियन लीग का। जीके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक ये सीधा प्रसारण पहुंच रहा है। बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए आकिमीर का ये गेंद, और इस बार अच्छी गेंद, एक बार फिर खूबसूरत गेंद, वहां कैच लब का अपील की जा रही है, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं, नकारा वहां पर स्वीकार नहीं किया, शंका का लाभ बल्लेबाज को मिलता हुआ और ऐसे में रन संख्या अभी भी अटकी हुई। हालांकि जिस प्रकार से हाव भाव थे वहां विकेट कीपर नासिर कुमार, इश्तियाक नाग और आकिमीर के, ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद विकेट प्राप्त कर लिया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुरक्षित क्रीज में यहां मानसिक तौर पर मुकाबले में बने रहना होगा, बेहतर तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी, गैप में गेंद को धकेलना होगा, खाली जगह जो है उनको भरना होगा, भरपाई करनी होगी, तब जाकर के आप सामान्य लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इस बार बैकफुट पर गए, दिशा दे दी उसको बाएं हाथ के बल्लेबाज ने, ऑफ साइड में फील्ड भी विजन पांचल द्वारा 1 रन और खाते में अच्छी रणनीति, 1-1 रन से पारी को आगे बढ़ाते हुए। Dealing in singles and doubles here. Need to convert ones into twos and rotate strike. Keep doing that on regular basis, on consistent basis. Persist with that tactic here. Rotate strike and keep that scoreboard ticking, moving all along as we watch Akib again. Goes and bows. Shaping for that big shot. It's Muzammil Feroz in. Another talented all-rounder. Muzammil Feroz driven it straight down towards long on. There is Dada who does mop up, but not before two batters crossed over for another single. And singles are coming at ease, singles are coming ball up to ball, each and every ball, but they need big shots in between to keep that scoreboard on track. You know that Royal Goodwill is a dangerous side with oh, look at that one! Ball changed its direction, misspelled and cost them a 4 here, and that was brought to you by Just Bukhara.
misfield, lapse on the field, and ball changed its direction. That's 4. चौका मिला वहां पर, हालांकि वहां प्रयास किया था रोकने का, लेकिन अंत में गेंद ने वहां वो ढकी छुपी सिचुएशन खेली आसिफ रातर के साथ और चौका मिल गया। ये चौका और आत्मविश्वास जरूर वहां पर बढ़ेगा नजमीन के लिए, और नजमीन की टीम यहाँ संकट की स्थिति में जरूर है, लेकिन आपके पास समय है, आपके पास अभी भी पर्याप्त समय कहना चाहिए है, और जहां से आपको बेहतर परफॉर्म करना होगा, बेहतर क्रिकेट खेलनी होगी, और जिसे कहते हैं ना हम क्रिकेट की भाषा में सकारात्मक सोच के साथ इस मुकाबले को आगे चलाना होगा, तब जाकर के आप पूरे 20 ओवर खेल करके एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। Yeah, I agree with your statement. You're absolutely right. Take it step by step and over by over, session by session, ball by ball, and make a kind of a streak over here. Stitch partnerships at the fag end. You can still finish on a good score, and which is very much possible. It's doable. The bends his back a little bit, quite a bit, and plays it back along, but fielder goes across to stop that one. No run again. People loving Jack Lone and other ladders too. Here is that one. There is pounce on offer. He is a spinner, but he generates a lot of pace, Dada, and it bounced over his blade into the safe hands. Issues with the score ticker. We shall get the official confirmation. Work on it, and we'll do that once it's done. X-Man, oh, quality, clever, goes down to the spine leg, field in pursuit, can't get to the ball. That's 4. That were brought to you by Just Bukhara. Cleverly done, scoops that one, and it goes all the way after a couple of bounces, and that 4 ball brought to you by Just Bukhara. Great shot, brilliant one, nice execution, and that earned him a 4 here. Quality shot from Muzamil Farouz. Devoufic in size, goes down on his knee, and then places the ball in the vacant zone. And next one goes back, and call is for 2. Is he going to go back for the second? Look at his partner. He's slipping here and there. He's having a lot of issues. He's unable to scamper through quickly between the. He isn't quick enough. देखिए, अब विकेट के बीच जब आप दौड़ लगाते हैं, दोनों का रिस्पांस बहुत बढ़िया होना चाहिए, आपको तालमेल का बेहतर परिचय देना होगा, तब जाकर के आप जो है उस रनआउट से बच सकते हैं, और वो परिस्थिति इस समय काफी महत्वपूर्ण रहेगी रॉयल गुडविल के लिए। अगर एक रनआउट के रूप में विकेट मिल जाता है, वो एक विकेट की तलाश में वहां एक साझेदारी किया, और इस बार यहाँ जोरदार अपील और उसे आउट करार दिया गया। LBW, एक और विकेट। और बराबर जब हमने यहाँ चर्चा की कि साझेदारी की आवश्यकता, वो साझेदारी निभी, लेकिन उस साझेदारी को बड़ी साझेदारी में परिवर्तित नहीं कर पाए, एंड उसी समय विकेट गिरता चला गया नजमीन का। यहाँ एक और विकेट गंवा दिया है नजमीन क्रिकेट क्लब की टीम ने। Well, one more is down here. Another one bites the dust, and that's a huge wicket. Well, our scorer will let us know, and we're waiting for the score to display, and it is displayed here. It's 7 down or 8 down. It's 7 down, 114 for 7 now. And falling like pack of cards. Another one bites the dust. And Newman walks in, and number 9 is Roof, Faizan Roof. And I was talking about prior to the toss, Nazir, that this lad shined at university level tournament. He was the part of that team which played semi-final from Jammu and Kashmir side, from Kashmir University side, and he was the part of that tournament. He was the part of the team, and his performance was speaking louder than words, and well, people were talking about he's a strong lad, but he proved his worth the way he bowled throughout the tournament. His words spoke loud and clear throughout that event and tournament. Then a 7 down 114 on the ball. बल्लेबाज आए हैं और 7 विकेट अब तक गंवा दिया है नजमीन की टीम ने। लगातार अंतराल के बाद विकेट गिरते चले जा रहे हैं। शुरुआत विस्फोटक हुई, उमर निसार और खालिद भट्ट का मुख्य योगदान रहा। 44 बनाए उन्होंने 20 गेंदों से, वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। नागिरुद पहले ही ओवर में 2 छक्के 1 चौका, और उसके बाद उनके अगले ओवर में भी उन्होंने 1 छक्का 1 चौका जड़ा। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने की, लेकिन उसके बाद से जब उनका विकेट गिरा, चलते गए उमर निसार, फिर लगातार अंतराल के बाद
विकेट्स गिरते चले गए और गेंदबाजी सर चढ़ करके बोली। यहाँ 114 तक पहुंचते पहुंचते 13.4 ओवर में अब 7 विकेट गंवा चुके हैं नए बल्लेबाज फैजान के लिए ये गेंद। और इस बार थर्ड बेंच क्षेत्र की ओर खेला, वहां बेहतरीन क्षेत्र रक्षण सोबते जहांगीर लोन का और निश्चित तौर पर रन बनने की संभावना को समाप्त किया। ओवर पूरा हुआ तो ऐसे में 14 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 7 विकेट गंवा दिए हैं। और यहां से अगर हम प्रोजेक्टेड स्कोर की बात करें 165 और आप 165 से अधिकतम का लक्ष्य छूना चाहेंगे, ये देखते हुए कि गुडविल के पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाजी, जहां जहांगीर लोन नजर आएंगे, जहां पे इश्तियाक रसूल, नासिर कुमार, नासिर गनई और उसके अलावा मुजीबुल हक, आदिल दादा और उमर लेफ्टी। और अंत में कुछ गेंदबाजों की अगर हम बात करें तो विजन पांचल और It's like that. You say Nazir, you throw it out. Who's not in the lineup? Who's not there? बिल्कुल आप जिस किसी भी व्यक्ति का नाम लेंगे तो वो यहाँ रॉयल गुडविल की टीम में खेल रहा है। और ऐसे में हम इस बात पे टिप्पणी कर रहे हैं कि आपको एक बड़े लक्ष्य तक जरूरी पहुंचना होगा। ये अलग बात है, क्रिकेट महान चिंताओं का खेल, आप 120-130 पर भी मुकाबला जीत सकते हैं। यहाँ गैप पे तलाशा, क्या बढ़िया स्ट्रोक है, कारपेट के सारे लुढ़कती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर, जस्ट बोखारा चौका। Bad line. Swill on it, Sexys, and fetches it from wide of the off and takes it down towards 5 leg for 4, and that 4 brought to you by just over 118. Every run is important, and that 4 is like gold dust here into the double figures. Muzammil Feroz 118 for the loss of 7. Partnership is what they require and need. Wide of the off again, but this time keeps it away down towards extra cover. There is a man, there is a field, will just be one, and it is only a single. 119 for 7 in over number 15. 119 15वें ओवर में और विजन पंचल गेंदबाजी कर रहे हैं। आखिरी ओवर उनके कोटे का 3.2 ओवर 26 रन 1 विकेट। गेंदबाजी विश्लेषण बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं, फैजान रूफ है सामने। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, हालांकि मिडिल और लेग स्टंप पर आती हुई गेंद कौन साइड पे दौड़ा, खेला जरूर, तेजी के साथ दौड़ पड़े, 2 रन पूरे कर लिए। तेज थ्रो जरूर था मुजीब का, लेकिन स्टंप्स पे सीधा नहीं था। ये दिशाहीन थ्रो, 2 रन और खाते में जोड़ लिए और 2 रनों के साथ रन संख्या अब जाकर के 121 तक पहुंची। 7 विकेट के नुकसान पर 15वें ओवर में विजन गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने दाएं हाथ के बल्लेबाज फैजान रूफ। नॉन स्ट्राइकिंग शॉट पे मुजम्मिल फेरोज 12-7 गेंदों से और 3 गेंदों से 2 रन बनाए हैं वहां फैजान ने। ये गेंद इस बार फिर धीमी गति की ये गेंद थी, एक बार फिर स्टंप्स की ओर आ रही थी, उसको ऑन साइड में धकेलने में सफलता प्राप्त की। वहां फैजान ने दौड़ पड़े 1 रन के लिए और जब तक विजन पांचल खुद जाकर गेंद को फील्ड करते 1 रन और 122। 7 विकेट के नुकसान पर 14.4 ये 15वां ओवर पारी का और इस ओवर के तुरंत बाद 5 ओवर का खेल बचेगा। बड़ा दिलचस्प मुकाबला, पहली पारी चलते हुए क्वार्टर फाइनल मुकाबला, तीसरा शालबुग चैंपियंस लीग का। आखिरी गेंद लेकर के विजन पांचल और इस बार सम्मान दिया, वहां पर एंथम का बल्ला प्रयोग में ला रहे हैं वहां मुजम्मिल फेरोज। मिडिल स्टंप पे आती हुई गेंद को बैट और पैड मिलाया और उसके बाद बल्ले के बीचों बीच गेंद को लिया वापस, बॉलर की दिशा में रन नहीं मिलेगा। आखिरी गेंद लेकर के तैयार विजन पांचल 15वें ओवर में उनकी ये गेंद और इस बार इसको मुजम्मिल ने खेला जरूर लॉन्ग ऑन की और नासिर गनई उस ओर तैयार हैं। वे जब तक गेंद को फील्ड करेंगे 1 रन जरूर मिलेगा मुजम्मिल को, स्ट्राइक उनके पास रहेगी। ओवर समाप्त हुआ 15 के बाद 123। 7 विकेट के नुकसान पर नजमीन क्रिकेट क्लब 123 extra just 2, and you can understand that. Look at the discipline, look at the tight lines and lengths, keeping everything tight here, not giving anything away and keeping things in control. And now they are bossing the situation over here, and it's 123 for the loss of 1 after 15 over number 16 is about to start. Another important quarter final underway. This is JK Sports Time in collaboration with its proud sponsors, bringing you the ball by ball commentary of this all important quarter final match. Tomorrow we will be live from WCL Grand Finale, Vellore Cricket League Season 1 inaugural edition, and it's Sultanas taking on Dido Rangers Kashmir. We can't get better than this, is it? तो देखिए बहुत ही बड़ा वो क्रिकेट का मेला सजने जा रहा है कल चनार क्रिकेट स्टेडियम अंबरपोरा में, जहां सुल्तान की भिड़ंत डडू रेंजर्स के साथ होगी और दोनों टीमें दिग्गज टीम है। जहां डडू की अगर हम बात करें थ्रू आउट द टूर्नामेंट उनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है। It's like biggest showdown tomorrow. बिल्कुल एक डिसिप्लिन टीम रही है डडू की, और वहीं पे सुल्तान की अगर हम बात करें उनमें आक्रामकता है, उनमें विस्फोटक अंदाज है। तो कुल मिलाकर क्रिकेट का एक बार फिर वो महासंग्राम कल अंबरपोरा में, वहां की मैनेजमेंट और गुलजार साहब के नाम। Yeah, first and man, Mr. Gulzar will be delighted
knowing that tomorrow it's going to be festive Sunday, blockbuster Sunday, superb Sunday, and it's going to be Sunday Dhamaka, Sunday Dynamite coming your way tomorrow from WCL. Pressure begins. Nadeem pulled away. Call is Patu straight away with the shot, and he says, "Dear colleague, it's 2-2 and 2 runs added on." Good running between the wickets. Every run is important. 1-2-5 for 7. Another 30-40 runs will make it a good contest between bat and ball. But anything below 150 will surely give batting side extra bit of cushion. जिक्र कर रहे हैं कि 150 से अधिकतम का लक्ष्य होना चाहिए। ये 16वां ओवर पारी का चल रहा है। नदीम गेंदबाजी कर रहे हैं, मुजम्मिल है सामने ये गेंद, और इस बार मुजम्मिल ने बढ़िया स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक, और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए। नजाकत और ताकत कमाल की, हालांकि ऊर्जा अभी इस स्ट्रोक के पीछे जरूर थी। एंथम के बल्ले का ये कमाल स्ट्रोक बेमिसाल, और गेंद सीमा रेखा से बाहर जस्ट बुखारा। चौका मुजम्मिल फेरोज के बल्ले से। नजवीन का इस चौके के साथ ही कुल योग 129 तक पहुंच चुका है 16वें ओवर में 7 विकेट के नुकसान पे। Handsomely driven, beats the man at mid-off, can't stop, can't even think of stopping that one. It races away. Oh, pace of delivery, change of pace. Call is for 2 again. Can't get the second one. 7 of this over so far. Calculated from Muzammil Feroz. What about a 20 of 12 balls? He has been playing for United Imports and Najmeen in between. It's a kind of a mix-up. He's mixing it up there, playing for 2 different franchises back home. But he's a quality cricketer. As Nadeem goes again to Faizan Roof, and Roof bunts it. And Aqib, not a clean stop, 1 more run added. Aqib quickly onto the ball. Just stop, and he was trying to hit the non-strike and to catch him short. Can't do that. Each and every run will make it a good contest, and that's what crowd is looking forward, and they want that to happen. Oh, another classy, and it races away down to the backward upon boundary for 4. That was brought to you by Just Bukhara. ये चतुराई, इसे क्रिकेट की भाषा में चतुराई कहते हैं। 2 खिलाड़ियों के बीच में से सिर्फ दिशा दे दी, गति का इस्तेमाल किया, चौका चढ़ा, और यहाँ मुजम्मिल फेरोज ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए चौका और जस्ट बुखारा रन आते हुए। और इस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता भी है वहाँ दोनों बल्लेबाजों को। बढ़िया प्रदर्शन, और अंत में इस प्रकार के जितने रन आप बटोरेंगे, जितना बेहतर तरीके से इस पारे को और गहरा करेंगे, उतना आपके इतना बेहतर कहा जा सकता है। इस बार फिर ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी ये गेंद का पीछा जरूर किया, लेकिन वाइड का इशारा। यहाँ 1 रन और 1 गेंद इजाफी जरूर मिलेगी रॉयल गुडविल की ओर से नजवीन क्रिकेट क्लब को। Well, 1 more run added, need to reload and re-bowl, but that was cleverly done. And guiding the ball, bisecting backward a point and cover point to perfection. As Nadeem goes again, keeps it away on onside. He will keep the strike for next over. And this is sensible cricket going on. This is very nice cricket going on. And look at Muzammil Feroz. What a batter, what a man. Timely knock. Much needed one. And he is still there, and he's going to carry his bat till the very last moment. It looks like the way he is in at the moment. He got his eyes in. Now he's trying to convert this start into a substantial one. When he's on, well, he's on to 25-14. Now he need to carry on till next 4 overs. I believe that they're going to finish beyond 150. देखिए वही इस समय कार्य करना है दोनों बल्लेबाजों को, जो कि हम टिप्पणी कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में। आपको मानसिकता के तौर पर इस मुकाबले को मानसिकता तौर पर बने रहना होगा मुकाबले में, और जितना आप मानसिक संतुलन बनाए रखेंगे, मानसिक संतुलन बनाते हुए इस गेम को आगे ले जाएंगे, उतना आपके हित में बेहतर कहा जा सकता है। और वो इस समय मुजम्मिल फेरोज और उनके साथ दूसरे खिलाड़ी समर्थन देते हुए फैजान रूफ, जो कि 4 पे 5 के दूसरे 25-14 के दूसरे 16 पूरे हो चुके हैं रॉयल गुडविल की ओर से। अगर गेंदबाजी की बात करें, 4 ओवर का खेल, और दादा अब गेंदबाजी करेंगे। 45 नंबर की जर्सी पहने हुए नदीम भट्ट ने 2 ओवर में 23 रन खर्चे, 1 सफलता उन्हें मिली। और ऐसे में 17वें ओवर की शुरुआत, 20 ओवर का ये कोटा शालबुक चैंपियंस लीग का निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबला वर्तमान स्थिति में चलता हुआ, और नजमीन की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का अवसर मिला। 16 पूरे हो चुके। 17वें ओवर की शुरुआत, फील्डिंग में अब जाकर के थोड़ा सा परिवर्तन, और तैयार मुजम्मिल फेरोज। बहुत ही बेहतरीन पारी, अंतिम ओवर्स में 25 पे नाबाद है, वो सामना करने के लिए तैयार आदिल दादा का। पहली गेंद लेकर के दादा मुजम्मिल की
के लिए इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ मिडल पे आ रही थी, उसको वापस खेला बॉलर की और उन्होंने अपने फॉलो थ्रो में गेंद को जाकर के फील्ड कर लिया। रन मिलेगा नहीं। 16.1 ओवर की गेंदबाजी। मुजम्मिल कुछ बड़े स्ट्रोक जरूर खेलने का प्रयास करेंगे क्योंकि अंतिम ओवर्स में अपना रन गति को और ज्यादा तेज करना होगा। इस बार खेला जरूर, हालांकि उस ओर खिलाड़ी तैनात है लॉन्ग ऑन की ओर, जब तक वे गेंद को फील्ड करते सबूत नासिर गनाई 1 रन और खाते में जुड़ेगा और 1 रन के साथ ही रन संख्या आगे बढ़ती हुई फैजान रूप सामने हो गए आदिल दादा के। दादा की अगली गेंद लेकर के फैजान के लिए और बार फैजान गेंद की पिच तक पहुंचे और उसको ऑफ साइड में धकेला। खूबसूरत ये स्ट्रोक था। नाग ने उस गेंद को न सिर्फ गति को कम किया बल्कि 1 रन से ज्यादा अवसर नहीं दिया दोनों बल्लेबाजों को। मुजम्मिल हो गए सामने। अच्छा वातावरण, खूबसूरत समा और बेहतर इस दिशा में यहाँ स्ट्रोक एक बार फिर लाजवाब मुजम्मिल के बल्ले से और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए जस्ट मौका चौका मुजम्मिल फेरोज के नाम। Quality from Muzammil Feroz. What a batter. What an innings. And look at that one. What incredible from this lad. And he's keeping them in the hunt here. He's keeping them in the competition here. What an innings from Muzammil Feroz. 30 of just 17 balls. Another 4 here. And his eyes lit up on that occasion. As Dada goes again. This time there is a man. There is a fielder. He's got here. He can't believe, he looks in disbelief there, but he's a goner. It's wicket number 8 down. Muzammil, what you have done? Man at long on straight down to the throat, and you know that it's Nasir Belly. He doesn't drop too many. और जिस प्रकार से उन्होंने स्ट्रोक खेला और वे चाह रहे थे कि हिलने की जरूरत नहीं है, चौका अथवा छक्का मिलेगा, लेकिन वहां बिल्कुल उस स्पॉट पे नासिर गनाई तैनात थे, उन्हें भी हिलने का अवसर वहां पर मिला नहीं और आसान सा कैच सीधे वहां पर हाथ में थमा दिया। ये एक और विकेट यानी कि 8वां विकेट गंवा दिया है नजबीन क्रिकेट क्लब की टीम ने। And important wicket of Muzammil Feroz. He needed to bat till the very last moment, but he thrown his wicket away, got a start, and I was expecting he's going to bat till the very last moment, but all of a sudden, lapse of concentration, lost his nerves, and straight down to the throat of long on. Nasir Belly does well. Now it's wicket number 8 down. It's down to the tail now. Newman walks in. Is Basit, but he's a tail ender. Is a quality bowler now. Got to do something with the bat here. Look at the sportsman spirit. These are the visuals. This is something special message for everyone back home that their brothers and brethren on the field and off the field hugging each other. Handshakes exchange and now getting ready to face the fresh ball. क्रिकेट से यही ज्ञान हमें मिलता है कि आपस में वो भाईचारा बनाए रखें। क्रिकेट की यही खूबसूरती है, ये मानता है। और एक बार फिर दर्शती हुई और क्रिकेट फील्ड के बाहर आप किस प्रकार का आपस का संबंध रखते हैं, क्रिकेट के फील्ड के अंदर आपके संबंध क्या है, ये काफी चीजें देखने लायक होती हैं। फिलहाल उसकी एक झलकी देखने को मिली और ऐसे में नए बल्लेबाज के लिए अगली गेंद दादा की इस बार ऑफ स्टंप से बाहर करारा स्ट्रोक, लेकिन पीछे खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया। 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ दोनों बल्लेबाजों को। बासित भट्ट और फैजान रूप की जोड़ी बीच मैदान में। बासित ने खाता खोला, फैजान 5 पे नाबाद। यहाँ 17 ओवर पूरे हो चुके हैं। 3 ओवर का खेल बचा है इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले की पहली पारी का। But that wicket of Muzammil Feroz, timely breakthrough, much needed one for bowling side here, and getting rid of Muzammil, that too at the death in over number 17. Now still 3 overs remaining. Now the question is that one, that is Faizan Roof and his partner need to keep that scoreboard ticking. They need to keep that scoreboard in mind. The other thing is to take it deep, and one more thing, that is that cloud cover is here. And talking of tomorrow, Super Sunday, that's going to be Super Sunday coming your way. Sunday Dhamaka and Blockbuster. That is going to be Sultan Warriors taking on Didu Rangers Kashmir. The mother of all battles, the old rivalry will be locking on us tomorrow again at WCL. और देखिए क्रिकेट, जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया कि क्रिकेट का वो महासंग्राम, वो मेला कल चिनार क्रिकेट स्टेडियम अंबरपोरा में सजेगा, जहां एक तरफ सुल्तान होगी, दूसरी तरफ डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम होगी और 2 बड़ी दिग्गज टीमें कल फाइनल मुकाबले में भिड़ंत करेंगी। फिलहाल जारी रखेंगे चर्चा इस वर्तमान स्थिति की। अगली गेंद लेकर के ओवर लेफ्टी को लेकर के आए हैं, बड़ा स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और जस्ट मौका चौका, करारा स्ट्रोक। और इस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता भी है। अंतिम ओवर्स में अब रनों की आवश्यकता है और रन चाहिए। दोनों बल्लेबाज अब कुछ कड़े प्रहार जरूर करेंगे और दर्शक भी चाहते हैं कुछ मनोरंजन अंतिम ओवर्स में देखने को मिले। Absolutely gorgeous cover draw, and it races away between cover and extra cover. And here is the second ball from Umar Lefty, beats him on that occasion, but we saw one quality shot that was great one. Next one, outward movement, it's
It's a dot ball, it's a precious dot in over number 18, but these batters need to keep that scoreboard ticking. They have runs on the board 148, take it around 160, make it a good contest between bat and ball. 148 रन बना लिए हैं और ये पारी का कुल मिलाकर 18वां ओवर 17.2 ओवर की गेंदबाजी। उमर लेफ्टी दूसरे स्पेल में 2.2 ओवर 19 रन सफलता उन्हें मिली नहीं है। अगली गेंद और इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक काफी ऊपर, नागुस और आ रहे हैं, नहीं पहुंच पाएंगे और गेंद सीमा रेखा से बाहर, एक और जस्ट बोखारा छक्का। That's gone all the way over long off, wide long off. For a while, Nog was interested in that, but that's all. He saw the ball beyond the boundary line, way beyond, and that's gone all the way. 150 comes up, 154. It's better to take it deep. Runs are coming. Believe me, you can take it beyond 170 now. With that six, it looks like quite visible. इस ओवर में 3 गेंदों का आना बाकी और उसके बाद 2 ओवर, कुल मिलाकर अभी भी 15 गेंदें आपके पास शेष हैं और 15 गेंदों से ज्यादा रन, करीब 30-40 रन और बटोरने का प्रयास होगा नजमीन का। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर जा रही थी और उसका पीछा करना चाहते थे, अंतिम समय में छोड़ा, जाने भर दिया विकेट कीपर नासिर कुमार के लिए। रन आया नहीं, यहां पर 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदों का आना बाकी। 17.4, 154 रन संख्या नजमीन क्रिकेट क्लब की 8 विकेट के नुकसान पे। Anything within the zone is going to be punished away. Anything wide run off, and he need to chase that, and he missed out twice in this over. Oh, good delivery this time. There was a bounce on offer. It hurried on to the bat. It hurries on to him, and he goes on top of that one and then bunts it towards the back with a point. 1 more run at it. 6 गेंदों से 12 बासित भट्ट और 6 गेंदों से 5 फैजान रूप उनका सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं बासित लगातार कुछ कड़े प्रहार कर रहे हैं, कुछ बड़े स्ट्रोक, विस्फोटक अंदाज उन्होंने अपनाया अंतिम ओवर्स में और बेहतर रणनीति दोनों बल्लेबाजों की। फिलहाल फैजान होंगे सामने उमर लेफ्टी के। ये गेंद और इस बार क्या लाजवाब स्ट्रोक और वहां लाजवाब एफर्ट। आसिफ राथर का निश्चित तौर पे चौका जरूर बचाया, लेकिन 2 रन यहां लेने में सफलता प्राप्त की। 2 खिलाड़ियों ने प्रशंसा की, सभी दर्शकों ने इस एफर्ट की और क्या कमाल का वो एफर्ट था। 2 रन और खाते में और इस प्रकार से 157 यानी कि 8 विकेट गंवा दिए, 157 बने, 18 ओवर पूरे हो चुके। 2 overs remaining, 12 balls are gonna come. 157 is already onto the board. Now these two lads need to take it deep till the very last ball. You can still think of 180 around that. It's gettable now, it's possible, it's visible, it's gettable, it is possible, it's doable at this crucial juncture if they bat till the very last moment. It's better to take it deep as possible, make it happen. This over number 19, penultimate over is coming up. Adil Dada is gonna bowl, and we saw a few great shots from Basit. For a while I thought he can only bowl, but the way he batted here, he is giving his side huge confidence. He's giving his side something to bowl at. It's over number 19. अंत में आपके टेलेंडर भी अगर आपको 20-20 रनों की पारी खेलते हैं तो वो भी एक महत्वपूर्ण किसी भी मुकाबले में हो जाता है। रन गति का सवाल, यहाँ काफी ऊपर गेंद, उस ओर नाग जा रहे हैं, लेकिन उनसे 1-2 कदम आगे गेंद गिरी और रन पूरा कर लिया। थ्रो किया था, वहां अवसर रन आउट का बना था, लेकिन वो भी हाथ से जाता हुआ यहाँ रॉयल गुडविल के 1 रन और खाते में जोड़ा। लगातार बेहतरीन प्रदर्शन इस समय क्रिकेट के इस मुकाबले में, चाहे वो बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, क्षेत्र रक्षण हो, कुल मिलाकर आकर्षक क्रिकेट का यह मुकाबला। क्वार्टर फाइनल पहली पारी चलती हुई 3.1 ओवर 21 रन 2 विकेट। आदिल दादा की गेंदबाजी विश्लेषण 7 पे फैजान रूफ। He's in his 4th over, 3.1, 2 for 21 Adil Dada here, and I think Basit is having issues with his back over there. He were having issues. I think he needs some attention of physio, but he's getting ready. Luckily he's fine, he's fit as fiddle. But Asif Ramzan walks in with a message. I think message will be try to go hard at the bowling, fetch some runs. This is going to give them extra bit of cushion while bowling. देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, यहाँ संदेश यही होगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रहार करने होंगे, ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने का प्रयास करना होगा, क्योंकि ये जो रन संख्या 160 के आसपास पहुंच चुके हैं और इसको अगर आप 180 190 के आस तक ले जाएं तो फिर एक चुनौतीपूर्वक परिस्थिति होगी दूसरी पारी में रॉयल गुडविल के लिए। You are absolutely right. Now they got something to bowl at. They have runs on the board. Here is Dada again to Faizan. Oh, that's a good shot. Flies over cover point, races away to the fence for 4. That was brought to you by Just Bukhara. कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऑफ स्टंप से बाहर, आप लेग स्टंप से बाहर, क्या लाजवाब स्ट्रोक था ये। चौका जरूर मिला और इस चौके के साथ रन संख्या और बढ़ती हुई। जस्ट बुखारा चौका। अंतिम ओवर्स में कुछ कड़े प्रहार। 19 ओवर आदिल दादा गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद फैजान के लिए और इस बार अच्छी गेंद थी, पंजों के बालू चलते हुए ऑफ साइड में धकेला, थ्रो किया, वहां पर स्टंप्स पे खेले और यहाँ क्या विकेट मिलेगा जी नहीं। सुरक्षित क्रीज में पहुंच चुके थे, लेकिन न सिर्फ सुरक्षित बल्कि 1 रन और खाते में जुड़ा। 1 more run added.
putting pressure on the fielders. Good running between the wickets. Each and every run is important. And one more run fetched by these two batters. This is over number 19 we're in. 19वां ओवर पारी का चल रहा है। आदिल दादा गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने बासित पट हो गए जो कि 13 पे नाबाद 7 गेंदों से 9 गेंदों से 12 रन बनाए हैं। फैजान ने आदिल दादा ने 3.3 ओवर में 26 रन खर्चे, 2 विकेट उनके खाते में। अच्छी गेंदबाजी और ऐसे में वो पारी का 19वां ओवर फेंक रहे हैं। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदों का आना बाकी है, 3 गेंदें बची हैं और उसके बाद अंतिम ओवर 9 गेंदें अभी भी शेष इस पहली पारी की। ये गेंद इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, हालांकि ज्यादा ताकत नहीं थी स्ट्रोक में। लॉन्ग ऑन की ओर नासिर गनाई के पास सहजता के साथ फील्ड कर लिया, 1 रन और खाते में जुड़ा। One more run at it. He plays it down towards long on area. Good running between the wickets yet again. And they know the worth and weight of each and every single here. Here is Dada. And goes back again, punches it once again down towards long on area. Will just be one again. बहुत ही अच्छी रणनीति, क्योंकि बड़े स्ट्रोक्स नहीं तो सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं और एक एक रन जानते हैं कितना कीमतीमान है इस रन का, और इस रन को बनाए रखना, इस रन गति को बनाए रखना काफी महत्वपूर्ण है इन अंतिम ओवर्स में। अगली गेंद लेकर के ये आखिरी गेंद होगी। इस बार बड़ा स्विंग किया, विकेट कीपर चौके, यहाँ रन मिलेंगे। ये बाई के रूप में, उपहार के रूप में जस्ट बोखारा चौका। ओवर समाप्त हुआ। अंतिम ओवर का खेल इस पहली पारी का बचा है। 19 gone, 170 on the board. I think we'll have to wait and watch. But lucky boundary, much needed one, and they needed that, getting that in the end. आखिरी ओवर खेल का बचा है और देखना होगा इन परिस्थितियों में इस आखिरी ओवर में कितने रन बटोरेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रयास होगा। उमर लेफ्टी पारी का आखिरी ओवर लेकर के रॉयल गुडविल की ओर से, और इन परिस्थितियों में इस आखिरी ओवर में आप कितने रन बटोरेंगे ये देखना होगा। बड़ा दिलचस्प निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबला, पहली पारी शालबुक चैंपियंस लीग की चलते हुए, और ऐसे में क्या लक्ष्य रहेगा रॉयल गुडविल के सामने ये देखना होगा। नाग लगातार बातचीत कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं वहां उमर लेफ्टी के साथ कि किस प्रकार की अंतिम ओवर में गेंदबाजी करनी है। यहां से रन गति को एक सीमित रखना है, ज्यादा रन बटोरने यहां से नहीं है, ज्यादा रन देने यहां से नहीं है, अवसर बल्लेबाजों को देना नहीं है। लेकिन दूसरी ओर बल्लेबाजों के पास संदेश यही है कि अंतिम ओवर्स में आप कुछ कड़े प्रहार करें, 10 से 15 रन और जोड़ लें तो निश्चित तौर पे ये 150 से 190 का लक्ष्य अवश्य रहेगा। Yeah, of course, and nearing in on here. Now, I think these two should try and take it deep. Work hard on the basics here and try to launch them big. There is nothing to lose, everything to achieve. Over number 20, ball 1. And wraps him on the body, on the pad to be precise. One more run at it in the form of leg bye. पहली गेंद पर लेग बाय के रूप में रन पूरा कर लिया, 1 रन और खाते में जोड़ लिया। 5 गेंदों का आना बाकी। उमर लेफ्टी और उनके सामने अब जाकर के जो बल्लेबाज होंगे वो किस प्रकार से प्रहार करेंगे। उमर लेफ्टी गेंदबाजी विश्लेषण 3.1 ओवर, कोई मैडल नहीं, 28 रन, और उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली है। ज्यादा खर्चीले साबित नहीं हुए लेकिन विकेट उन्हें नहीं मिला, क्योंकि जिस प्रकार वो गेंदबाज हैं। और अभी भी 5 गेंदों का आना बाकी। दूसरी गेंद लेकर के तैयार, लगातार फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है और इन परिस्थितियों में देखना होगा यहां से आप आगे 5 गेंदों से कैसे प्रहार करेंगे। अगली गेंद लेकर के उमर लेफ्टी, दाएं हाथ के बल्लेबाज बासित के लिए, और बाहर अतिरिक्त तो 4 लेग स्टंप की छेद में वाइड की डिमांड, लेकिन अंपायर ने स्वीकार नहीं किया। 2 गेंदें हो चुकी हैं, अंतिम 4 गेंदों का आना बाकी। Batter not happy with the ball there. He banged it in short. He was asking umpire for that. Tight is the reason and should have been called as a wide as far as batter is concerned. But umpire says 1 for the over is possible and he can do that. He can bowl that 1 for the over. Here is the next one again. Bang it in. Trying to bang it away. Misses the line of ball completely. समझना होगा, पढ़ना होगा गेंदबाज को। 3 डॉट गेंदें यहाँ पे अब तक देखने को मिली है इस ओवर में। उमर लेफ्टी का बढ़िया ओवर, आखिरी 3 गेंदों का आना बाकी। और बासित लगातार कुछ कड़े प्रहार कर रहे हैं, कुछ विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं और आवश्यकता भी है, लेकिन सही समय पे कनेक्शन हो नहीं रहा है। गेंद की पिच तक पहुंच नहीं रहे हैं, अनुमान लगा नहीं रहे हैं गेंदबाज पे। अगली गेंद, और इस बार बल्ला चलाया, सफलता मिली, लेकिन गेंद हवा में नागुस और संतुलित हो रहे हैं और अब जाकर के कैच लपक लिया। चौथी गेंद पर अंतिम ओवर की ये विकेट मिला, 9वां विकेट गवा दिया नजमी ने। 2 गेंदों का Basit is gone, caught by Nog. It's wicket number 9 down and Umar among the wickets again and he finds his first wicket. 170 रन बना लिए हैं, 9 विकेट, और एक समय में जब प्रतीक्षा की जा रही थी और ऐसे में जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से शालबुक चैंपियंस लीग के निर्णायक 30 क्वार्टर फाइनल मुकाबले का सीधा प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर, एमएचएम फैशन फीस्टा, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बखारा, और उसके अलावा हमदान हुरिकेन्स इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स के अलावा एचएनडी एक कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम नियर नेटी प्रोडक्शन। अगर बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स का अपना समर्थन सहयोग देने के लिए।
और ग्रीन लाइन्स क्रिकेट क्लब ने भी अपना समर्थन सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्पॉन्सर जो अपना समर्थन दे रहे हैं। और डलगेट स्पोर्ट्स क्लब ने भी अपना समर्थन दिया है, तो निश्चित तौर पे धन्यवाद करना चाहेंगे। और अपने श्रोताओं का भी जो इस समय हमारे साथ इस सीधे प्रसारण में जुड़े हुए हैं, क्योंकि जानते हैं श्रोता, हर दिन हर नए स्थान के साथ हम क्रिकेट का वो हर एक कीमती लम्हा आप तक ले जा करके आ रहे हैं। और इस बार शालबोग से, लेकिन कल रविवार के दिन संडे को जुड़ना न भूलिएगा अंबरपोरा चिनार क्रिकेट स्टेडियम में, जहां क्रिकेट का महासंग्राम WCL वुलर क्रिकेट लीग 2024 का पहला एडिशन फाइनल मुकाबला सुल्तान बनाम डडो रेंजर्स आप तक पहुंचेंगे ठीक 10 बजे। Can't get better than this. What a day, and people were eagerly waiting for this all-important cricket match. It's going to be biggest showdown tomorrow at WCL. Penultimate ball of over number 20. Ball number 5. Left-hander is in at number 11. Saju on strike. Where is this one going? Good shot. Driven handsomely. Could be tight. Needed directed. But he gets away with that one. Little off target. He survives. Final ball is coming up. 171 विकेट के नुकसान पर पहली पारी नजमीन क्रिकेट क्लब की टीम कहां पे समाप्त करेगी, क्योंकि 20 ओवर का कोटा और 19.5 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। आखिरी गेंद लेकर के उमर लेफ्टी तैयार, सामने होंगे फैजान रूफ जो कि 13 पे बाद 11 गेंदों से क्या चौका, क्या छक्का, क्या सिंगल, क्या डॉट, क्या विकेट, सभी निर्णय यहां पे उपस्थित हैं। लेकिन इनमें कौन सा निर्णय हमें देखने को मिलेगा? यहां खेला जरूर शरीर पे लगे, नो बॉल का इशारा, वहां पर रन जरूर मिलेगा और एक अतिरिक्त गेंद और फेंकनी पड़ेगी। 172। Need to reload and re-bowl. Pressure will be on bowler. He's unhappy with himself, Deruma lefty, but he overstepped it. It's a forward crease, no ball. He overstepped it. Freight coming up. And you can't lose your wicket here. There is nothing to lose. Just go after the Freight here. Try to take him on. Last ball of over number 20 is coming up. 172 on the board. Fazan Roof on strike. This is what Najmi needed. He's gonna go after. As Umar leaves, goes and bows. Oh, good delivery. Yorker Lange delay. Oh, fumble from wicketkeeper. One more run added. That's all he's going to get. 173 is where they finish it up. Sign it up. 174 will be the target for Royal Goodwill to win this one to enter the semi-final. We'll be back shortly with the chase. Assalamu alaikum.